Computer, right? So welcome again. Today's topic is very initiative we took for the paint industry, I said, and we welcome all of our paint fraternity, technocrats, applicators who joined us. Again, I would like to welcome Mr. Mario Quincino from Canada, Dr. Gaurav Srivastava from Alnex. Dr. साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है. And people from various parts of India. I can see many people. Manjeet ji is there from Rajasthan. VLS Industries from maybe Hyderabad, sir, or Yes, Hyderabad, sir. okay, great. Mr. Srinivas is from Bengaluru, I think, or Chennai. Maybe I don't know. Manishankar ji is with us. Mr. Rajesh Batula. Many people are there. Devendra Vora ji. Many people are there. Alok ji is with us. Alok ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपके तो कई क्वेश्चंस का भी हमें इंतजार रहता है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े रेलेवेंट होते हैं और पेंट इंडस्ट्री को उनसे बड़ा फायदा मिलता है. थैंक यू सर, थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड मेनी पीपल आर देयर. लेट्स स्टार्ट विद एंड मे बी आज किसी का इंट्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि आज ये पेंट इंडस्ट्री का एक सेशन है, क्वेरी सेशन है. और आज के सेशन के ऊपर हमें ये भी देखना है कि what will happen in the future for coming months, because we just trying to get one webinar a month for the query sessions, maybe on any topic, or maybe on general industrial coatings, or maybe on any of you can say any of water based coating, on any paint coating. So we are very much ready to start with, and any one of us have any question, any query. देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है आज, ये आप लोगों के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है. और अगर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे या आप कुछ पूछना नहीं चाहेंगे तो उसमें भी बड़ी समस्या हो जाएगी. तो मेरा मानना यह है कि हमें खुल के आज अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए. पेंट इंडस्ट्री एक परिवार है. वी आर अ फैमिली, एंड इफ वी डोंट डिस्कस विद आवर फैमिली एनी प्रॉब्लम, we are very much far away from the solutions. So we can ask any question. To start with, मुझे लगता है कि एक क्वेरी मैं ले लेता हूं. डॉक्टर साहब, थोड़ा सा चलिए, आप क्योंकि मुझे नजर आ रहे हैं इस समय, तो आपसे पूछना चाहूंगा, एंड आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट पॉलीसिलिकॉन कोटिंग. और मैं आपको एक चीज डॉक्टर साहब के आंसर से पहले बता दूं कि ये जितने भी टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, इन कमिंग मे मींस वी आर हैविंग अ कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन कम अवार्ड शो इन मे ऑफ दिस ईयर, starting on 10th of May and 11th of May. 2 days are there, and we are taking all these topics which I have just mentioned in our conclave. And maybe today, or maybe in coming weeks, coming months, we have some brief introductions or brief knowledge of these topics. But at our conclave, offline conclave in Delhi, these topics will be discussed in very, you can say, in wide manner. Probably people from all over globe will meet you there to discuss about these topics, these coatings. I just repeat again that which of these topics are we are going to take on that particular conclave. So there is polysilicon coatings, e-rickshaw, electric vehicle, EV coatings, you can say that, industrial furniture coating, industrial coating for coastal areas, marine coating, glass coating, automotive finish, electrical appliances coatings, agriculture equipment coating, construction equipment coatings, and auto ancillaries coating. These are some topics which are very much to be discussed, and people from the paint industry must know that these coatings are very much happening things for getting more growth and more profits in your business. So we should
understand and know about these type of coatings, we can say that if we have a good basket of good products, including water-based coatings and industrial coatings, our customer reach will increase, our growth of our company will increase, the basket size of our company will increase, and obviously if everything increase, our profit margin will also increase, and this is for sure. And start with, I just request Dr. Gaurav Srivastava ji. वैसे तो क्वेश्चन आ गया डॉक्टर साहब, तो श्रीनिवास सर का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं, बिकॉज आई एम वेरी मच कीन टू यू नो get answered the question of the people who are asking right now. Okay, sir. Mr. Srinivas, please ask the question, sir. Unmute, sir. Yes, yes, please. Go ahead, sir. नमस्कार सर. नमस्कार sir. How are you, sir? Great fine, to see fine, you. सर. सब लोग जो पार्टिसिपेंट है सब लोग को नमस्कार सर. जी जी, सबकी तरफ से नमस्कार सर. हाँ, सबको नमस्कार सर. जी जी जी. मेरा ये क्वेश्चन है जी. हम लोग छोटा कंपनी से बात कर रहा. जी जी. मगर टॉप 10 कंपनीज का जो वाटर बेस्ड पेंट्स है ना जी, उसमें अपने को हाई एंड एमल्शन से बनाने को जाएगा, उसमें शीन लेवल कम मिलेगा. प्लस लो उसका क्या, उसका मटेरियल टॉप 10 कंपनीज का बोल रहा हूँ, उसका मटेरियल वेट कंडीशन में ओपासिटी कम रहेगा, ड्राई कंडीशन में ओपासिटी ज्यादा होगा, शीन लेवल ज्यादा होगा. मगर हमारा क्या उसका अपोजिट हो जाता, कभी भी उसका कम हो गया तो अपना ज्यादा होता, ज्यादा हो गया तो कम होता. वो कौन सा पीवीसी लेवल पे सेट करने का है, शीन लेवल कैसा लाने का है? Although Srinivas sir, this webinar is on industrial coating, but maybe I think many people are there who can answer it. मंजीत जी हमारे साथ हैं जो वाटर बेस्ड कोटिंग बना रहे हैं. हाँ. और भी बहुत सारे लोग हैं. तो डॉक्टर साहब आप कुछ बताएं पहले इसके बारे में, फिर आगे एक एक करके इस बारे में कुछ चर्चा करेंगे. डॉक्टर गौरव सर प्लीज, इफ यू कैन से समथिंग. भाई मुझे आप नजर आते हो डॉक्टर साहब, इसलिए आप मतलब ये मत सोचा करो कि पहले सीधा मैं आपके पास आ जाता हूँ, और जनरली सबसे पहले मुझे आप ही नजर आते हो प्लीज. हालांकि और भी बहुत सारे लोग हैं, आई रियली वेरी फील वेरी सॉरी, लेकिन अगर आप में से कोई इसका जवाब भी जानते हो तो आप भी अपना हैंड रेज कर सकते हो प्लीज. मतलब मैं प्लीज ऑफेंडेड फील ना कीजिए. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज. डॉक्टर साहब. Yeah, so the question is related with the sheen level in MNC, the companies, MNC companies, and between the SME sector. Yes, sir. So we see the sheen or the gloss, means gloss is called in solvent-based system and sheen is called in water-based system. So the first thing is the particle size of the emulsion. So the particle size of emulsion plays a very important role. Because when the particle size is low, then you get a better sheen, and in wet condition the opacity is little less than in dry condition. So what happens when you add a low particle size emulsion in your system, or you use a low particle size emulsion in your system? At the wet condition, the light diffracts very easily. It passes through the between the gaps of the emulsion particles. So in wet conditions you will get a little low opacity, but whereas when it dries or it attaches with with the help of coalescing agent, it forms a film, then the scenario will get changed. So the first thing is on this, I would like to emphasize on the particle size of emulsion. So the lower the particle size of emulsion, the better the sheen is. And second, it's all about well said and talked on the importance of wetting agent, importance of dispersing agent, then the importance or the loading of the opacifiers, or you can say what we call it. There is a liquid polymer. I just forget its name. Any Yeah. role in this, sir? Biocides, dry film, or any biocides? See, biocide has an important role, but not necessarily in the opacity, of the system in wet condition and in dry conditions. Obviously, they have a very important role in can stability or the film at the film stage to secure the film from algae and other things. But when it is a fresh paint, when it is a fresh paint, the most important thing is wetting of your
wetting of your filler, wetting of your pigment, and the proper dispersion stability, and of course your resin will play a very important role in the particle size of resin, or sorry, particle size of emulsion, not resin. Particle size of emulsion will play a very important role here. Okay. So main thing, Srinivasi, we can say that the important thing in getting sheen is the particle size of emulsion. Manishankar ji कुछ कहना चाहते हैं? Manishankar ji. Low particle size we have to be take. Yes, yes, yes. आप जब भी अपनी किसी भी रॉ मटेरियल परचेज करें, इमल्शन खासकर जब परचेज करें, तो आप एक बार जरूर बात कर लें अपने वेंडर से about the particle size. You need low particle size for to get a good sheen. Okay. See, when somebody is making an emulsion, he designs the particle size. Actually, he designs the particle size. Particle size for the same material, even if you are talking about styrene acrylic, you are talking about pure acrylic, you are talking about EVA-based emulsions, the particle size is decided by the emulsion manufacturers. So they can design a particular emulsion with low, and there are number of emulsion manufacturers who make the same grade with the different particle size, supplying to different, because see, you know, when we are discussing about the MNCs, the requirement from the MNCs are very huge. So the same thing can, the same grade number can have a different particle size or different quality control parameters for you, as well as for SME segment. See, I am not blaming anyone who is they are playing a very fair role. I don't take this thing in a negative way. But yes, if you are having a means, you can discuss with your emulsion supplier, especially if somebody is making an emulsion, and they can design a lower particle size for you than the regular one. You will definitely see some very good sheen in the correct grade also. And another one is the wetting of the system. Sometimes what happens, we disperse a pigment very nicely, and at that time when we are dispersing, the dispersion is very good. There is no problem in dispersion. But over the period of time, we find that the dispersion reverses. So it will go back, because in water-based system, we don't use any kind of mechanical stress, means heavy mechanical stress on breaking the agglomerates of pigment particles. So that is also an important role, because deciding the wetting agent, the deciding factor is the wetting agent actually, not the dispersing agent. So deciding factor, when it is a wetting agent, your pigment will wet 100%. Definitely it will give you very good opacity in dry state rather than in wet state. So this is one of the important thing. Don't means it's my advice. Use some good wetting agent in your formulation. We are using only Alphax 200, sir. See, I am not against any product. I am not against any product on this platform. Alphax 200 is a very excellent product. It has served industry a lot. But as you know, that over the period of time, the chemistry of wetting agent evaluates. Means evolution is there. The new wetting agents are coming in the market. Maybe the surface treatment of the pigments also changes. The surface treatment of fillers also changes over the period of time. The surfactant that is used for the emulsification in the emulsion system also changes. So all the things should go in line to achieve a better optimum opacity as well as the sheet. So there are means if I am talking about the thumb rule, there are 3 thumb rules for getting better sheen. One is the particle size of emulsion. Second one is excellent wetting of your or filler, and the third one is the I just forget that name. That is a liquid opacifier. Actually, it is added in the formulation, most of the formulation. I just skipped that name. Sometimes it happens with me also. A lot of chemicals are there. When I'm not using that, I skip just name. I know the proper, there is a liquid opacifier which is added in the system, and that the compatibility with the emulsion to that liquid opacifier is also very important. So try to match all these things. You will get a very good result.
and also the doses of coalescing agent, work on that as well. ओके सर, पार्टिकल साइज मिनिमम कितना रहेगा सर, मैक्सिमम कितना रहना लेने के लिए, शीन लाने के लिए पार्टिकल साइज कितना चाहिए बोल के मैं बोलूं उसको? You have to discuss with them what particle size right now you are getting, because in emulsion data sheet no one is there is no mention of on the particle size of the emulsion. Okay, so what is the primary particle size of the emulsion when they are making? So this is an important, you can ask them, and at least 20% lower particle size will be better whatever you are getting right now. ओके, नहीं मिनिमम कितना लेवल पे रहना, 1 पार्टिकल साइज से कम रहना, ज्यादा रहना, कुछ लेवल इज देयर? See, there are a number of limitations while they are making an emulsion. So if we are going to ask them a particular particle size, then there will be a significant change because of your requirement. There will be a significant change in the cost of the emulsion. So better if you ask them about the what is the current particle size, and if they have any grade which has a lower particle size than that, first take an experiment or trial on that, and based on that you can connect me anytime, and I will give you the exact particle the size of that particle, or the in microns or in nanomicrons, so then you can get better results. मनीष जी, आपका जब भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी वॉइस जो है वो डिस्टर्बिंग आ रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है आपके माइक में या किसी में, इसलिए मुझे बार बार आपको म्यूट करना पड़ रहा है। श्रीनिवास सर बोलिए सर। ओके मेरा कुछ यू गॉट द आंसर सर, श्रीनिवास सर, यू गॉट द आंसर। बहुत सारे इमल्शन हो सकते हैं, मैं किसी एक पार्टिकल साइज के लिए अगर कुछ बोलूंगा ना तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, हाउ मच शीन डू यू वांट, व्हाट इज मींस आपका स्टैंडर्ड किधर है, मतलब जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं वो किधर है, और दूसरे के रिजल्ट जो है वो कहां पर है, किस तरीके की आपको ओपेसिटी का डिफरेंस आ रहा है, ये सारी चीजें मींस बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब आप इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो। Basic problem is that whatever sheen you are getting is because of the emulsion you are purchasing, and if the emulsion particle size will be lower, whatever you purchasing right now, you will get better result. This is what Dr. Gaurav is want to say. And if you say that particle size, or so that we can ask the vendor that we need this emulsion of this particle size, sir, it will be very difficult for Dr. Saab and we also to mention and to tell. Although he just told you that you can contact him anytime and he can guide you more on that. आगे बढ़ते हैं सर। मनीष शंकर जी बोलिए सर। मनीष सर, आपको मनीष सर जी सर, मैं व्हाट्सएप करेगा आपको, मेरा को इतना सीन आ रहा है, इतना सीन चाहिए, कौन सा पार्टिकल। डन सर, वी विल हेल्प यू 100%, वी विल हेल्प यू सर, नो प्रॉब्लम, वी विल हेल्प यू 100%। ओके थैंक यू। मनीष शंकर जी बोलिए। हाँ, श्रीनिवासन जी नमस्कार, मनीष जी नमस्कार, गौरव जी और श्रीनिवासन जी नमस्कार। मैं आपको बताता हूँ कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जो आपका एमएनसी कंपनी, इसमें दो डिफरेंस मेरे। मनीष शंकर जी, आपके वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रहा है जी। अब हेलो, बोलिए जी। तो जो मैं बता रहा था आपको, एमएनसी कंपनी और अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसमें दो चीजें जो वाइटल प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा एक क्या है कि हमारा साइकिल टाइम रिडक्शन जो पेंट में होना चाहिए, जो आपका जो साइकिल टाइम है वो एक प्रॉपर होना चाहिए। जब हम कोई भी पेंट बनाते हैं, जो स्पेशली जब ग्लॉस या सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और चूज ऑफ फिलर्स, जो फॉल्स फिलर्स हैं हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंडर्स, जो गौरव सर ने बोला एकदम सही उन्होंने बोला, डिस्पर्सिंग कम वेटिंग एजेंट, जो वेटिंग एजेंट है अभी डिस्पर्सिंग कम वेटिंग एजेंट्स भी मार्केट में बहुत मिल रहे हैं कंपनी। और एल्पोक्स से प्रॉपर आप चाहेंगे कि उसको आप सही कर पाए तो वो नहीं हो पाएगा, आपको उसके साथ कुछ ना कुछ, जैसे क्या है कि अगर एक परत कहीं लगती है, अगर पीछे से आप एक परत लगाएंगे तो उसका सॉलिडिटी बढ़ता है। उसी तरह से अगर डिस्पर्सिंग आप सिर्फ एल्बॉक्स से लेना चलेंगे, वो क्या है, इमल्सिफायर भी है, और डिस्पर्सिंग भी आप उससे लेना चाहेंगे तो उसको कुछ
उसको कुछ शक्ति चाहिए, तो आप डिस्पर्सिंग कम वेटिंग एजेंट भी अभी मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज इमल्सन की बात, इमल्सन बहुत वाइटल पॉइंट है। तो अभी क्या है कि जो भी जिनकी भी टेक्निकल डाटा शीट्स होती है उसमें आपका जो है कि वो नहीं दिखा रहेगा कि ये उसमें टीजी रहता है, और आपका रहेगा कि सॉलिड कंटेंट कितने हैं, और उनका पार्टिकल साइज कोई कंपनियां नहीं देती हैं। तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा पर्सनली कि पार्टिकल साइज इमल्शंस का इस वही बात पार्टिकल हम कह साइज रहे हैं ना सर कि पार्टिकल साइज डिस्कस अभी नहीं कर सकते हैं। नहीं और कर सकते क्योंकि हैं। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे और ब्रेक लेके आगे बढ़ना है, बिकॉज ये आज का जो सेशन है वो इंडस्ट्रियल जी कोटिंग जी के ऊपर है, और हम लोग जी डिस्कस करना चालू हो गए हैं वाटर बेस्ड कोटिंग बिकॉज ऑफ श्रीनिवास जी, और ये इसका इनको बेनिफिट मिल गया कि किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो इसको हम लोग आगे और बढ़ेंगे श्रीनिवास जी, बिकॉज मैं अभी इसमें आपको माफी चाहूंगा मणिशंकर जी, क्यों रोक रहा हूँ, कोई क्योंकि भी यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रियल कोटिंग के लिए आए हैं, और मेरे साथ जो लोग बैठे हैं, मेनी पीपल आर फ्रॉम पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री आल्सो, एंड मेनी पीपल आर फ्रॉम industrial coating, they are manufacturing industrial coatings and they are working in industrial coating. So we have to think about these people also, because water based coating we have a, you know, a separate session for water based coating, because this coming May we are doing a conclave, and both topics, the industrial coating as well as the water based coating, we are taking both the topics. Today we are doing this webinar on queries for industrial coating. So we start फॉर इंडस्ट्रियल कोडिंग टू। डॉक्टर गौरव, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज दिस पॉलीसिलिकॉन कोटिंग, कैन यू मेंशन दैट? Manish ji, polysilogen actually, polysilogen coatings are the advanced version of, you can say, in the in a very innovation in the kind of a silicon chemistry, basically. So polysilogen is a very new subject for Indian market actually. Quite 7 or 10 years back, there is a requirement that has raised, or you can say that it has been initiated in Indian market to get low DFT films which have very good weatherability as well as very good scratch resistance properties and very good hardness. So polysilogen is a component which is made with the reaction of some means you can say nitrogen compound with the chlorosilane, and with the help of that we generate a polymer which is having a functionality, a very good functionality, and it is upon drying it gives a very good scratch resistance. So it is in a very nascent stage here in India. No one is making that polymer. All the polymers are imported and just diluted here in India and supplied to various industries. Now, one of the biggest user of that industry is the railway. In all the railway, means the top coat, they require a top coat of 4 or 5 micron maximum. And with that, they want a scratch resistance of 7H pencil hardness. And with 5 microns, giving a 7H pencil hardness is next to impossible with all this type of coatings, all other coatings. And polysilogen plays an important role because it attaches with the surface. See, first we need to understand the molecular structure, then we can design a coating on that. It's just not about the coating. It's a you can say this is a if you have done ever ceramic coating or car, so the polymer is like that only, but it is an advanced version of that. So nowadays SiOSi, this is the bridging link, or SiNSi, that is the bridging link. So now that those are used especially in ceramic coating, ceramic car coatings, or any ceramic coatings. But the polysilogen is an extended version of that, with then some anchoring group and some polymeric group like some alkyl, methyl, ethyl, propyl, whatever you can say, the groups are there, and they give a very good flow leveling attachment within the 5 microns. So it's a very new. I cannot explain much here right now. But if you want, then we can have a separate webinar on polysilogen coating.
that will that we are doing. You know that on 10th of May and 11th of May we are covering this topic. I just tried to convey paint industry of India that there is a coating called polysilagene, and the purpose of getting to you on this is because we just wanted that the paint industry should know that which new coatings or which coatings are there in the market which MSME should work on, and maybe they get good results and maybe they get good growth in that coating. I am taking some a question also from Mr. Kishore Rathore. Sir, please. Boliye, sir. Hello, sir. Hello. Yes. Yes, sir. Gaurav, sir. Just one question is there. Actually, just this is the general question. We are working in automotive paint shop. Okay. Hello. Okay. Yes, yes, please, Yes, please. Am I audible? Am I audible? Yes, yes. Where are you calling from? Just can you give a small introduction of yourself, please? Yes, sir. Actually, the question is that for paint finish, we have a testing like a long wave and a short wave. That is LW and SW. Okay. Yeah. And there is like a parameter like W, A, E, C, D, and E. And also there is a roughness R value also. If the question is that if long wave is disturbed and short wave is disturbed, so then where we have to work on primer, base coat, or top coat. Like for long wave also, where there is a disturbance in long wave. So where we have to work for a long primer, base coat, or top coat. See, Sir, can you give your introduction also, please? Doctor, one second, please. Sorry. Kishore. Yes, sir. Yes, sir. Kindly give your introduction, sir, also. Where are you calling from? Yes, sir. Yeah. I'm from Pune. I'm a paint technologist. Okay. In application or in production? From Technical Institute Pune. Yeah. In application, actually, I'm working in ABB, robotic ABB division. Great. ABB. Mr. Mario, yes. you also join us in this question, maybe. Towards Dr. Gaurav, please. Let Mani give his view. Then I will come back on that. This is the application question, sir. Maybe Mr. Mario can answer it, or maybe they can help in this. Okay, Mr. Mario. could you repeat that? Yes, I'm here. Could you repeat the question again? I'm sorry. Yes, sir. Actually, the question is that we have after final painting or after paint finish, final paint finish, we are checking long wave and short wave rings through website. Okay. If my long wave is disturbance, there is no, I'm not getting a reading. So where we need to work in primer, base coat, or final coat. That means clear coat or whatever. If short wave is disturbed, then where we want to work? That is the question. Dr. Gaurav, could you help me? I didn't understand the question because of the. Actually, What the question is now? I got the question in first time also. Now this is more clear right now. So the question is that in an automotive refinish, Mr. Kishore want to know, there are three parameters when we are checking the flow leveling of a film. One is the long wave, calculation of long wave. Second one is the calculation of short wave. And third one is the calculation of roughness of the surface. There are three parameters on which flow and leveling or the surface finish is observed. So the question is that if they are getting differential values in short wave, where they have to work in base coat, in primer coat, or in top coat, or if there is a value, the change is in long wave, where they have to work in short wave, in base coat, or in primer coat, or in the top coat.
So this is the question, means the difference. How do we find the culprit? Whether culprit is the base coat, it is a primer coat, it is the top coat, with respect to the differential values of long wave, short wave, and roughness values. Okay, so for me the primer coat is the main thing. I mean, if you have a good prime coat, then you can improve your top coats. So I don't know if Mr. Guraf, if you agree with me with that. So there is one more important thing. When we are testing this the surface finish, obviously after the top coat we are going to test the surface finish. Either you are applying a metallic base coat, or you are applying a solid color top coat, or you are applying a metallic base coat followed by the clear coat, or solid pigmented coat followed by a clear coat. So there are number of things in that. See, if you are just calculating on the basis of short wave and long wave, see, every coat has their own respective value of short wave and long wave. Okay, so when we are discussing with this, since you are from the application side, I will take this forward to the manufacturing side as well, because at the time of application, yeah, there is a chances you can change the surface finish by adding some sort of additive in the formulation. In liquid paints, it is very easy. It is next to impossible. You cannot add anything in the post addition. Okay, so in liquid paints, yeah, when there is a change in long wave, you should work on the acrylates. If there is a significant change in short wave, you should work on siloxane based additives. These two will balance out the surface finish, means the long wave and the ratio between the long wave and short wave. Hello, Gaurav sir. Maybe Kishore, you got the answer? Can you please repeat? Yeah. I got. I request you to Gaurav sir. Please, can you repeat that? Which additive you need to add for long wave and short wave? You repeated, na? Can you please repeat that again? For most of the cases, for the long wave, we add acrylates, and for the short wave, we add polysiloxane based additives, surface additives. Okay, Mr. Ganesh. Okay. Mr. Ganesh. And there is one more addition. Now, since India there is no such regulation, so you can add on fluorine modified surface additive also, which helps a lot in if there is a minute difference in short wave and long wave. So only one additive, that fluorinated polysiloxane, work very well against the acrylate and the polysiloxanes. And with respect to the coating films, yes, the problem starts from the base coat. Problem never starts with the primer coat. Mr. Ganesh. Next question, Mr. Ganesh. Hello, sir. I have to give the answer of first question, like long wave and short wave. Okay. Sir, mainly. Sir, apna introduction can we have your introduction first, please? Yes, sir. Sir, myself Ganesh. I am from Concern Aerolite Paints Limited. Okay. Great. Yes, sir. Sir, mainly अपना जो short wave जो होता है ना, it depends on the average roughness of the substrate, like a ED roughness and bare sheet metal roughness, and the primer and the base coat. The short wave is coming from this factor. If your short wave is higher side, na, then there is a poor finish. Then you have to work on the short wave. For the short wave, you have to work on primer and base coat mainly, and the average roughness, RA value. Okay. And for the long wave, sir, you have to work on the clear coat. Yeah, this is the main answer. Long wave and D value. Good. Great. Balaji sir also want to say something. Balaji sir. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. I just wanted to submit with this polysiloxanes actually. Oh, wait, sir. Another thing is going on right now, and we will come back with the polysiloxane.
Okay, maybe Mr. Kishore got the answer. And Dr. Gaurav, can we proceed on polysilogen again, sir? Dr. Gaurav, sir. See, polysilogen is still in India, is it in a very nascent stage? We are not making the polymers actually. We are importing the polymers and diluting it in the solvent and some part of the resin or the binder, and we are supplying it to the industry. So until unless there is a manufacturer who come forward to make a polysilogen polymer here in India, it is a very difficult to flourish this type of chemistry, because there are some NDAs are signed. Hello. There are some attachment sites are available which attaches very well with your top coat system. Yes, sir. So this is actually based on so basically the polysilogen coating is made with the help of it's a reaction product between dichlorosilane and ammonia. So the base polymer is based on that. Balaji sir, who also want to add something? Balaji sir, Networking. हाँ कुछ नेटवर्क का इशू चल रहा है सर शायद. That's why, yeah. अभी क्लियर है सर वॉइस? मेरा नेटवर्क, मेरी आवाज आपकी क्लियर है. Yes. मेरे यहाँ से मेरे एंड से कुछ प्रॉब्लम है सर. अभी ठीक है सर. Okay. So Balaji sir also want to add something? हाँ, I just wanted to add on to Gaurav sir actually. Actually, I have used this material and I have developed some coating for aircraft canopies. Actually, these polysilogens we cannot use for that normal coating application as pigmentation and other things. Only transparent lacquer करके ही हम लोग इसको अभी use कर रहा है. In the form of pigment add करके इसको हम नहीं use कर सकते हैं. Because when we are putting it more than 5 or more than 10 micron एक्चुअली ये कोपोली में उसका मैन्युफैक्चरिंग. सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर. एंड वो लोग, हाँ, हेलो, यस, योर वॉइस वाज सुना ब्रेकिंग जाएगा सर? या नाउ यस यस. सो दिस एक्चुअली जो पॉलीसिलाजेन टेक्नोलॉजी ना, नाउ इट इज ओनली फॉर लैकर और ट्रांसपेरेंट कोटिंग करके ही काम आएगा. इन द फॉर्म ऑफ पिगमेंट एडिशन एंड ये सब अभी नहीं चल रहा है. दैट इज व्हाई इन रेलवेज दे आर यूजिंग एज ए टॉप कोट ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोटिंग के ऊपर एक टॉप कोट लगाता है. बिकॉज इट्स ये सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी एंड एंटी ग्राफ्टिक प्रॉपर्टी देता है. हाँ, बिकॉज ऑफ इट्स लो सरफेस एनर्जी इट गिव्स यू एंटी ग्राफिटिक प्रॉपर्टी. हम उस पे लिख नहीं सकता है, उस पे हम कुछ ऐसा कोई स्पिट करेगा तो भी इजीली क्लीनेबल कोटिंग बनता है उससे. ओनली ट्रांसपेरेंट एंड लैकर करके ही चलेगा ये. इन द फॉर्म ऑफ पिगमेंटेशन इट वोंट वर्क बिकॉज इट बिल्ड्स थिकनेस हाई, सो इट क्रैक्स. बिकॉज ये पॉलीसिलाजेन जो टेक्नोलॉजी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिन्स आर देयर. वन इज ऑर्गेनिक पॉलीसिलाजेन एंड अनदर इनऑर्गेनिक पॉलीसिलाजेन. उसको हम PHSZ एंड OPH करके नाम देता है. व्हाटएवर टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग आर ऑर्गेनिक पॉलीसिलाजेन. ग्रेट सर, ग्रेट. अभी एक क्वेश्चन और आया है आगे. Actually, Dr. Sahab, this is just a brief of polysilogen, and we just introducing this coating because we want that paint industry and coating industry must know about this coating,
and we are going to, take this topic in our upcoming conclave in Delhi. And the question now we are getting from Mr. Lalit Chaudhary. He is asking about any idea on healing polyurethane coating. Healing polyurethane coatings. Dr. Saab, Dr. Gaurav sir. Yeah, healing polyurethane coatings है क्या सर ये? देखिए, जैसा नाम के अंदर ही छुपा हुआ ना, हीलिंग पॉलीयूरेथेन कोटिंग्स मींस इफ देयर इज स्लाइट स्क्रैच, if there is a slight means disorientation of that film while you are using it, so it can heal itself. Oh yes, okay. This system first introduced especially in epoxy resins. With epoxy coatings, the first it was introduced in epoxy systems, epoxy coatings, and later on that has come in the polyurethane system as well. So this is a niche coating, and there are certain manufacturers of that coating as well in India also, and from the outside of India as well. I think if some manufacturer will throw some light on that, that will be much better, because many times it opens a lot of secrets. Since it is a very niche coating, there is a lot of efforts involved to make a polyurethane self-healing coating. So I rather would not go in the chemistry. Balaji sir wanted to say something. Yeah. Yes sir, unmute yourself. Yes sir, Balaji sir. हाँ सर, ये हीलिंग पॉलीयूरेथेन सर इन द फॉर्म ऑफ पॉलीयूरेथेन नहीं है एक्चुअली. नॉर्मली कोटिंग जो सेल्फ हीलिंग कोटिंग करके बाहर मार्केट में अभी तक आया नहीं है. बट जो सेल्फ हीलिंग नॉर्मल ओल्ड सेल्फ हीलिंग कोटिंग में आउटसाइड हम कैप्सूल्स बना के वो कैप्सूल कोटिंग में डाल के यूज करते हैं. तो इफ कोटिंग में कुछ माइनर माइक्रो क्रैक्स अगर कुछ आएगा तो वो क्रैक्स को इन जो कैप्सूल प्रेजेंट इन द कोटिंग इट ब्रोक्स एंड हीलिंग एजेंट उसमें से आके सील करके वो जो क्रैक को हील कर देगा. सो लाइक अपना हैंड अगर अपना हाथ टूट जाएगा तो व्हेन वी आर पुटिंग अपना प्लास्टिक डालेगा तो वो क्या प्लास्टर डालेगा तो जैसा अपना बोन हील हो जाता है ना, वुंड जो है जैसा हील होता है नेचुरल प्रोसेस, जैसा ही कोटिंग में अगर कुछ माइक्रो क्रैक्स आएगा तो वो माइक्रो क्रैक्स आएगा तो सम टेम्परेचर वो एरिया में वो पॉलीमर का ऐसा इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, वो जैसा क्रैक आएगा उधर आप थोड़ा सा टेम्परेचर दे दो वो ऑटोमेटिकली दोनों फिर बॉन्डिंग होके फिर पॉलीमर जैसे सेम ये हो जाता है. So that technology we are also working, we are also developing some coatings here, and one of my student is working in that सेल्फ हीलिंग कोटिंग्स करके. तो वो टेक्नोलॉजी जो पॉलीयूरेथेन जो बोलता है उसको विट्रीमर टेक्नोलॉजी बोलता है. विट्रीमर इट एर्लियर जो है सेल्फ हीलिंग कोटिंग इट इज डिफरेंट, एंड ये न्यू टेक्नोलॉजी है 1980 में स्टार्ट हुआ है. अभी पीपल आर वर्किंग इन दिस एरिया बिकॉज जब ओल्ड कोटिंग जो है वन टाइम हीलिंग ओनली, एक बार क्रैक आ गया हीलिंग एजेंट आ गया वो हील होगा तो वन टाइम, बाद में फिर सेम क्रैक उधर ही आएगा तो इट विल नॉट हील. सो नाउ पीपल आर वर्किंग फॉर मल्टीपल हीलिंग. जो एक बार ही स्क्रैच आ गया तो फिर वो हील हो गया, फिर एक बार स्क्रैच आएगा तो again for healing. So this is polyurea base है, it is not a polyurethane है, polyurea है. उसमें डिसऑर्डर रिएक्शन से ये करता है, वो पॉलीमर बनाता है. उसमें when it cracks, when उसमें जो भी हील्स आते कोई भी स्क्रैच आता है तो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन, फिर when we are giving from external stimuli कुछ टेम्परेचर और कुछ यूवी रेडिएशन अगर कुछ हम देंगे तो वो एरिया में दोनों का बीच जो बॉन्ड है इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगेन बन के फिर वो पॉलीमर हील होता है. सो दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग आउट इन द कोटिंग इंडस्ट्री, उस पे चल रहा है एक्चुअली. दिस इज ग्रेट सर, ग्रेट सर. आलोक जी कुछ आप भी बोलना चाहेंगे क्या? नमस्कार सर. नमस्कार सर जी. सर हम लोग तो अभी इंडस्ट्रियल कोटिंग में, वुड कोटिंग में है या पीयू में है, उसमें है. उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं सर, मोस्टली विंटर के समय. और जितने मैन्युफैक्चरर हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते सर कि जब वुड कोटिंग में या अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब स्टोविंग पेंट्स एबीएस के ऊपर कोटिंग होती है सर, पॉलीकार्बोनेट के ऊपर, तो उसमें सर पैकिंग करने के बाद ना फॉग आ जाता है सर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन.
बहुत बढ़िया फॉग आ क्वेश्चन सर। जाता है और वो कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, क्यों आता क्या आता ये नहीं मालूम। क्यूरिंग का प्रॉब्लम है कि एल्किड का प्रॉब्लम है कि एमएफ का प्रॉब्लम है कि यूएफ का प्रॉब्लम है, ये किसी को समझ में नहीं आता। सर इसमें मैं गौरव जी पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि अगर आप में से कोई इस पे कुछ बात करना चाहें इस प्रॉब्लम पे। आलोक जी एक बार दोबारा रिपीट करें सर। सर जैसे ये हीरो होंडा हो गई या होंडा जो मोटरसाइकिल है, बाइक्स हैं, उसके ऊपर जो है एबीएस की जो रहता है ना, मडगार्ड्स रहते हैं सर, उसके ऊपर स्टोविंग कोटिंग होती है सर। जी होती है। लो टेम्परेचर कोटिंग होती है। वो जो कोटिंग होती है सर, वो जैसे 15 मिनट 30 मिनट या 1.5 घंटे का जो भी उनका क्यूरिंग टाइम रहता है, क्यूरिंग टाइम से वो निकलने के बाद कन्वेयर बेल्ट से उसको पैक कर देते हैं सर पन्नी में। जी। पैक करने के बाद सर जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब करोल बाग में पहुंचता है सर वो आइटम, और विद इन 5 to 7 डेज में सर फॉग आने लगता है। जाली से आ जाती है, पॉलीथीन का निशान आ जाता है। नहीं 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 सर, पॉलीथीन निकालते हैं आप, पॉलीथीन का निशान नहीं आ जाता सर। कोटिंग जो कोटिंग रहती है वो फॉगी हो जाती है सर। मडगार्ड के ऊपर फॉगी जैसा लगता है कि जैसे फॉग आ गया उसके ऊपर। अच्छा ओके। खैर इसका आंसर अभी मैं लेता हूँ। आप में से कोई इसका आंसर देना चाहे सर तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, बिकॉज ये आंसर, खैर मुझे पता है इसका आंसर, लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि इसका आंसर क्या है। तो आप में से कोई इस बारे में बोलना चाहेंगे सर? बिकॉज देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर एनीथिंग। दिस टुडे सेशन इज फॉर क्वेरी एंड क्वेश्चंस एंड डिस्कशन फॉर ईच एंड एवरीवन। तो आप में से जो भी आंसर भी करना चाहें या कुछ बोलना चाहें या कुछ बताना चाहें तो दे ऑल आर वेलकम। तो anyone wanted to ask, anyone wanted to tell this the answer of this question कि ये जो फॉगी आ जाता है सूखने के बाद, जब सेलिंग पे जाता है प्रोडक्ट आफ्टर फिनिशिंग एट इवन आफ्टर 7-10 डेज, तो वो क्यों आता है? एनीवन कैन आंसर? आलोक जी इसमें ना एक प्रोडक्ट यूज होता है उसको कहते हैं कैटलिस्ट जी, और इसमें कैटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। अच्छा मैं यार जवाब बड़ा डर डर के इसलिए दे रहा हूँ कि मैं इतना टेक्निकल बातें नहीं कर पाऊंगा आपसे। प्रैक्टिकल बात जरूर कर पाऊंगा लेकिन टेक्निकल बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ हमने काफी समय तक स्टोविंग पेंट के अंदर वर्क किया है, तो जो हमारे कस्टमर्स थे उनको ये प्रॉब्लम रहती थी, और वो प्रॉब्लम ये ज्यादातर रहती थी कि पॉलिथीन का निशान आ जाता था, प्रोडक्ट सूखा नहीं गीला गीला सा रहता था, तो उस वजह से ये थी। तो जो रिजल्ट वहां से निकल के आता था वो ये आता था कि कैटलिस्ट जो थी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, और स्टोविंग पेंट को जब भी एबीएस या प्लास्टिक के ऊपर कोटिंग की जाती है तो उसको 120 डिग्री से 90-80 डिग्री तक लाने के लिए कैटलिस्ट यूज की जाती है, लो क्यूरिंग किया जाता लो है। क्यूरिंग करने के लिए। तो वो कैटलिस्ट का प्रॉब्लम रहता है कई बार, अगर कैटलिस्ट के अंदर उतना उतना शक्ति नहीं रहता है कि उसको लो क्योर बना सके, तो ये प्रॉब्लम तब आता है। मंजीत जी कुछ बोलना चाहते हैं फ्रॉम एचडी कोटिंग, एचडी कलर। मंजीत जी बोलिए सर। मंजीत जी आपने, हाँ बोलिए बोलिए। जी बोलिए सर। एक्चुअली स्टोविंग में नहीं, हर पेंट में ये दिक्कत आएगा, और विंटर में नहीं, समर सीजन में भी आएगा। उसके 2-3 रीजन है। एक तो हमने जो ऑब्जर्व किया, यदि फास्ट ड्राइंग में मोस्टली बहुत आसानी से ये आता है, जब आपका थिनर कंफर्टेबल नहीं हो तो वो क्या हार्ड नहीं होता है फिल्म, तो ऊपर फिल्म के ऊपर जो आपका कोटिंग है उसके ऊपर हल्का सा टेकीनेस रहता है, तो वो जब चिपक जाता है आपका प्लास्टिक, तो वो धीरे 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 अपना जगह बना लेता है, वो छोटे छोटे मार्क्स दिखते हैं। तो मोस्टली जो आप कैटलिस्ट की बात करें वो भी यही करेगा कि वो क्या करेगा, फिल्म को हार्ड कर देगा। तो जब तक वो फिल्म हार्ड ड्राई नहीं होगा और यदि उसको रैप करेंगे तो ये दिखता ही है। दो आपको ऐसे नहीं पता चलता है बहुत बार कि हाँ फिल्म हार्ड ड्राई हुआ है कि नहीं हुआ है, ये ऊपर से वो आप देखेंगे ऐसे तो लगेगा कि नहीं फिल्म तो सूख गया आसानी से। हाँ ये हो जाता है। पर ये मोस्टली यही रीजन से ही होता है। उसके बाद और भी कारण होंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा मेरे को आता नहीं है, तो हमारे बड़े साहब लोग बताएंगे अभी। यहाँ पे और भी किसी से क्वेश्चन पूछूंगा, फिर एंड में जाऊंगा डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि देखो हम सबको बताने वाले तो डॉक्टर गौरव अच्छे से समझा देंगे, लेकिन एक ओपिनियन बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग तरह की लोगों की सोच रहती है कि ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी कैसे ठीक नहीं होगी। तो वो भी जानना बहुत जरूरी है कि लोग कैसे कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं। तो हैंडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजें हैं। मैं आगे जैसे बढ़ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि ओके ठीक है। डॉक्टर साहब अभी कोई आए नहीं है सामने से जो इसका आंसर दे, तो सर आप ही थोड़ा सा और रोशनी डालें इस पे।
डॉक्टर गौरव सर। मनीष जी देखिए, एंड में हमें आप ही नजर आते हो सर, हमारी अब आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है तो हम नहीं, क्या नहीं, करें, ऐसी कोई बात हमें नहीं है। देखिए मजबूरन ही बहुत आना ही सारे पड़ता लोग है। हैं, बहुत सारे लोग के पास होगा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। जी। हम भी बहुत सारी चीजें आप लोगों से सीखते हैं, शॉर्टकट्स हैं इंडस्ट्री के, वो सीख लेते हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता कब हम सीख करके चले गए वहां। नहीं ठीक है सर, जी देखिए, बताइए। किसी भी कोटिंग सिस्टम है, अगर वो स्टोविंग सिस्टम है ना, तो वहां पर दो, पहले केस को हमको थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा। पहला पहला है कि क्या ये प्रॉब्लम अनक्योर्ड फिल्म की वजह से आ रही है, फर्स्ट थिंग इज। एंड सेकेंड वन, एक फिल्म क्योर है उसके बाद आ रही है। अनक्योर्ड फिल्म का मतलब क्या, जैसे पार्शियल क्योरिंग हुई, जैसे आज आप सपोज करो आप विंटर सीजन में बैठे हैं, गौरव सर, विंटर पूरा सीजन में, पूरा क्योर होने के बाद, सब कुछ होने के बाद नहीं आलोक जी, मैं आपका सवाल समझ गया। आप जिस जिस तरीके की कंपनीज की बात कर रहे हैं, वहां पर इस तरीके की ऊपर नीचे नहीं हो सकता। उनका ओवन का टेम्परेचर भी एग्जैक्टली शो करेगा। उनका पूरा सबस्ट्रेट सिस्टम का परफेक्ट है टेम्परेचर सर। आने के बाद ही ओवन का टेम्परेचर चालू होगा। वो सारी चीजें मैं समझ रहा हूं, मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं इसमें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, इसको दो हिस्सों में बांट के देखा जाता है, और दोनों को एक ही जैसा समझ लिया जाता है कि भाई पॉलिथीन चिपक गई, पॉलिथीन का निशान आ गया, या जाली आ गई उसके अंदर। आप जो बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्लाउडिंग, उसको बोलते हैं क्लाउडिंग प्रॉब्लम को, स्टोविंग के अंदर। अभी इसमें दो चीजें हैं। पहला है कि जब आप कोई भी प्लास्टिक सरफेस लेते हैं, वॉट एवर, बम्पर, एबीएस का ले लो, बहुत सारी हैं, आप किसी का भी ले लो, और विंटर सीजन और समर सीजन दो चीजें हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, कि विंटर्स में जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, उससे करीब 5 से 7 डिग्री कम टेम्परेचर होता है जब आपका स्टोरेज का टेम्परेचर होता है। यस सर। सो आपका पेंट भी 5 to 7 डिग्री कम टेम्परेचर पर, मतलब जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो कम है उसका, और जो सबस्ट्रेट है उसका भी कम है। सो हमारी टेंडेंसी क्या है कि हमने तो ये लिखा हुआ है कि भाई 90 डिग्री 30 मिनट तक गर्म करना है, माल पक जाएगा। ठीक है, तो हमने 90 डिग्री 30 मिनट तक गर्म किया, माल पक जाना चाहिए, और हमारा जो लेबर है वो ये नहीं देखने जा रहा है कि ये मटेरियल का स्क्रैच रेजिस्टेंस कैसा है, या उसका क्रॉस कट कैसा है, उसका एडहेशन बराबर आया नहीं आया फिल्म का। उसने हाथ लगा करके देखा, अपना नाखून लगा के देखा, अगर नहीं घुसा है अंदर तो इसका मतलब मटेरियल ओके है, पैक करो और भेज दो। ठीक है, यहां पर जो प्रॉब्लम जनरेट होती है, उसके पीछे जो मेन प्रॉब्लम है वो है पार्शियल अनक्योरिंग। इट्स नॉट फुली अनक्योर्ड, इट्स अ पार्शियल अनक्योर्ड। मे बी 1 or 2% जो सिस्टम है वो क्योर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब भी आप ओवन को स्टार्ट करते हैं या ओवन को चलाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में भी टेम्परेचर बहुत कम है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ओवन है ना, जो रिजल्टेंट टेम्परेचर देना चाहिए उतना नहीं दे पाता है। जैसे जैसे अगर आप एक बात करो, अगर आप गर्मियों के मौसम में लकड़ी जला करके बैठ जाओ, ठीक है, तो आप 5 फुट दूर बैठे होगे ना, तो भी आपको बढ़िया तपन मिलेगी, मतलब बढ़िया एकदम आंच आ रही होगी। लेकिन वही अगर आप सर्दियों के मौसम में हो, तो आप लकड़ी के ऊपर भी बैठ जाना चाहोगे, जैसी आजकल नॉर्थ में ठंडक चल रही होगी। मैं तो अभी फील नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जैसी चल रही होगी उसमें ये हाल है। सो वैसे ही जो ओवन का टेम्परेचर होता है ना, जिसमें क्योर किया जाता है, तो उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? सो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या, स्टोविंग सिस्टम के अंदर हम कैटालिस्ट दे देते हैं। सो वो कैटालिस्ट डालते हैं, तो जो कोटिंग अभी 90 डिग्री पे क्योर हो रही थी, वो 80 डिग्री पे क्योर होने लगती है। सो जो ओवन का जो डिफरेंस आया ना टेम्परेचर का, वो वहां से काम कर जाता है और आप कर लेते हैं। अब यहां सवाल ये कि हमने कैटालिस्ट भी डाल दिया, उसके बाद भी कोटिंग के अंदर ये इश्यू आ रहा है। हाँ, हो जाता तो है। ये जो है ना, ये इश्यू जो है वो अब आपका कोटिंग की क्योरिंग से रिलेटेड कम है। नाउ इट इज रिलेटेड विद द ड्यू पॉइंट, क्योंकि जब आपका पीस बाहर निकलता है, तो पीस बाहर निकलने के बाद भी उसमें से सॉल्वेंट का इमिशन हो रहा होता है। देयर आर सर्टेन पार्ट ऑफ पॉलीमर इमिशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन, क्योंकि वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर वो है। अगर आप उसी समय उसको रैप कर देते हैं, तो अंदर क्या होता है, ड्यू बन जाती है जी। अंदर ड्यू बन जाती है, जो मॉइस्चर अंदर है ना, वो अंदर इंट्रैप हो जाता है। और जैसे वो मॉइस्चर, पॉलिथीन नहीं चिपकेगी इस केस में, अब क्या होगा, वो मॉइस्चर कोटिंग के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। हाँ, ये पन्नी नहीं चिपकती उसमें सर, वो हाँ, कोटिंग में फॉग होता है। जहां जहां पर कोटिंग के अंदर जाएगा, वहां वहां पे व्हाइट पैचेस मिलेंगे आपको। बिल्कुल।
सो ये कोटिंग की ससेप्टेबिलिटी है। अब इसको दूर करने का तरीका एक ही है कि जब भी जो आपका कंपोनेंट है उसको रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए और उसके बाद उसको पैक करिए। अगर आप उसको जनरल प्रैक्टिस में पैक करते रहेंगे तो विंटर्स में इश्यूज आएंगे। और देन देखो ये इश्यू वैसे आते विंटर्स में ही है सर ज्यादातर। ये जो है देखिए समर में अगर इश्यू आएगा ना तो वो ओवर हीटिंग की वजह से आ सकता है। हाँ, ओवर हीटिंग हो गई इस वजह से, क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन चल रहा है ना। अभी कोटिंग आपने देखो सबस्ट्रेट का टेम्परेचर था 40 डिग्री, आपने उसको कोट किया, अंदर भेज दिया 90 डिग्री पे, तो 45 से 90 डिग्री तक जाने में तो टाइम बहुत कम लगेगा ना सबस्ट्रेट को। ठीक बात है। और यही टेम्परेचर 10 डिग्री का है, 10 डिग्री से 90 डिग्री तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा ना उसको। सो द एडजस्टमेंट एट दैट साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मोस्टली जितनी भी कंपनियों की, अगर आप बड़ी कंपनियों की बात करेंगे तो वहां पर वो इस तरीके का एडजस्टमेंट करके रखते हैं, और इस तरीके के एडजस्टमेंट की वजह से वहां पर इश्यूज तब आएंगे जब जैसे एमएफ है या यूएफ है वो मॉइस्चर उठा ले। जी जी, वहां पर तब ये इश्यूज आएंगे, जैसे बैरल खुला रह गया या जो कोटिंग है वो खुली रह गई, हार्डनर के पॉइंट के अंदर, या कैटालिस्ट का जो वो है वो ओपन रह गया, या यूज हो रहा है कई दिनों से, और क्या है इस ठंड के मौसम में वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता जाएगा। भाई कैटालिस्ट है क्या? एसिड कैटालिस्ट ही तो है। हाँ, और क्या है? पीटीएसए है सर 20% सॉल्यूशन में। हाँ भाई पीटीएसए है, और वो भी किसके अंदर है? आप उसको एक वाटर लविंग सॉल्वेंट के अंदर डालते हो ना, अल्कोहल में रहता है वाटर लविंग सॉल्वेंट, तो हाइड्रोस्कोपिक सॉल्वेंट है तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, नंबर ऑफ एडिटिव्स आर देयर जो इस तरीके की प्रॉब्लम से आपको बचाते हैं। सो नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ये बेसिक प्रॉब्लम मेरे को लगता है प्रोडक्शन की नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम एप्लीकेशन की है। और एप्लीकेशन के वक्त जो आपने बात बोली ना कि इसको रूम टेम्परेचर तक आने दिया जाए, वो सबसे बड़ा क्योरिंग का एक वो रहता है सर। ये इसका जवाब ही यही है जो मुझे मनीष जी, जब खाना खराब होता है ना तो खाना बनाने वाले को पकड़ा जाता है, खाना खाने वाले को नहीं पकड़ा जाता। वो बात ठीक है सर, लेकिन वही बात है जो स्वाद बना होता है। अब ये मैं यहाँ पर राइट इन पेट इंडस्ट्री, आप अगर उसको सिखाने जाओगे तो आपको यहाँ मैं हमेशा फेवर करता हूँ अपने मैन्युफैक्चरर्स की, और यहाँ मैं हमेशा एक तरह से उनको सपोर्ट करता हूँ। बिकॉज होता क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो एप्लीकेशन की वजह से आए या एक किसी और XYZ वजह से आए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन खड़ा होता है वो खड़ा होता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर, जिसने प्रोडक्ट बना के उनको बेचा। ये चीजें मैंने बहुत फेस की अपनी लाइफ में, बिकॉज अभी तो हम लोग पेंट डिवीजन में अब जुड़े हैं, इससे पहले मैं कोटिंग के अंदर ही था, काफी था, और इंडस्ट्रियल कोटिंग के अंदर ही, खासकर स्टोविंग के अंदर, और खासकर यही जो आलोक जी बात कर रहे हैं ABS और फाइबर के अंदर, इसमें मैं बहुत काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे पता है। ये लोग हमेशा यही करते थे कि प्रॉब्लम जो है वो साहब आपके माल में, आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, हमारा तो तरीका बिल्कुल ठीक है, हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। बट ये जो अभी आपने आंसर दिया कि हम लोगों को रूम टेम्परेचर तक आने का वेट करना चाहिए, बिकॉज 90 डिग्री 80 डिग्री 100 डिग्री तक जो प्रोडक्ट जाके ये बनता है, वो बाहर निकलते ही एकदम से मॉइस्चर भी पकड़ता है, एकदम से उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि विंटर के अंदर उसने फॉगी होना, क्योंकि ड्यू वाली जो बात आप कह रहे हो वो भी इसमें आ जाता है। तो रूम टेम्परेचर तक आने देना, उसके बाद में इसके सॉल्वेंट के जब सारे एब्जॉर्ब हो जाए, उड़ जाएंगे, सब इवेपोरेट हो जाएंगे, तो उसके बाद इसको पैकिंग पे लेके जाना, वो सबसे सटीक आंसर मुझे लगता है। अभी वरुण जी भी शायद कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं। मनीष जी, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे ये गुजरात में बन रहा है, वहां टेम्परेचर अलग है, वहां पे जैसे कोकोनट बना, MFUF बना, वहां सब उनकी टेस्टिंग में सब बराबर आता है, जब वो मटेरियल नोएडा, जम्मू या कठुआ जाता है वही कोकोनट, तो कहीं ऐसा तो नहीं सर कि वो प्रोसेस में वहां तो उन्होंने पैक कर दिया, यहाँ अपने नॉर्थ में आते आते कहीं वो उसमें रिएक्शन हो गई और वो मटेरियल में कोई मॉइस्चर ट्रैप हो गई क्या? ये भी तो एक रीजन हो सकता है सर। सर इसके 2-3 रीजन जो मुझे समझ में आए अभी तक, जब भी मैंने काम किया, और जब भी हमने ये देखा कि पॉलिथीन चिपकने के निशान या फॉगीनेस जो आती है, सबसे पहला जो रीजन होता है वो कैटलिस्ट का होता है, कि अगर कैटलिस्ट आपकी प्रॉपर है और सही काम कर रही है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा रीजन, इसमें जब आपका मटेरियल प्रॉपरली सूखता नहीं है, प्रॉपरली ड्राई नहीं होता है, और उससे पहले अगर आप पैकिंग पॉलिथीन चढ़ा देते हो, तो वो दूसरा रीजन रहता है। तीसरा रीजन इसमें रहता है कि जो ओवर हीटिंग, जो हीट है उसमें उसको 90 तक या 80 तक मिलनी है, लेकिन चलेगी वो 120 तक। तो ये 3 रीजन जो मैंने प्रैक्टिकली देखे अपनी लाइफ में, मैं वो आपको बता रहा हूँ। बाकी जो डॉक्टर साहब ने बात बोली है, ये भी एक रीजन रहता था, तो हम लोग अपने कस्टमर्स को ये कहते थे कि साहब आप इसको थोड़ा सा वेट करके पैकिंग करो। हाँ, ये भी ठीक है कि ये प्रॉब्लम ज्यादातर सर्दियों में ही आती है, और उसका रीजन भी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि जितने भी सॉल्वेंट्स रहते हैं, और थिनर्स खासकर, ये एक रीजन और मैं बताता हूँ आपको, जो थिनर रहता है, स्टोविंग थिनर,
आजकल स्टोविंग थिनर लोग प्रॉपर यूज नहीं करते हैं जो होना चाहिए, तो कई ऐसे थिनर्स आ जाते हैं सर मार्केट के अंदर जो एसीटोन बेस भी होते हैं या और ऐसे ऐसे कई सॉल्वेंट बेस होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को। तो ये भी एक बहुत, हम कोकोनट को अकेला ना पकड़े ना, जब थिनर मिक्स होता है उसमें तो वो काफी डाइल्यूट करके उस गन से निकलता है। और मैं समझता हूं कि कई ऐसे जगह पर भी, छोटी जगह या बड़ी जगह पे प्रॉब्लम आती है जहां पर प्रॉपर मॉइस्चर को कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं है, तो वो भी एक वजह हो जाती है सर कई बार। वजह मॉइस्चर है, चाहे वो ड्यू की वजह से आ रहा है, चाहे वो थिनर में डिजोल्व होके आ रहा है, चाहे वो किसी रेजिन सिस्टम में डिजोल्व होके आ रहा है या पेंट में आ रहा है, वजह सिर्फ मॉइस्चर है। वरुण जी। सर आलोक जी, जी सर एक दो पॉइंट है मेरे, जैसे अभी मंजीत सर ने कहा और अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, इसमें हमें ऐसे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि पहले तो फिल्म क्योर हुई या डिफेक्ट क्योर अनक्योर फिल्म से आया, तो वो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि भाई उसकी डोजेस सेट आपका देखो, आप विंटर में आप देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो एप्लीकेशन ह्यूमिडिटी है लगभग एनवायरनमेंट पे 45 से 55-60 तक रहती है, अलग अलग, जैसे आपने अलग अलग सिटीज का नाम लिया, तो उन ह्यूमिडिटी पे पेंट का इफेक्ट रहेगा पहला। दूसरा, आप उसका क्रॉस कट एडेजन से ये चेक कर सकते हैं कि हाँ भैया जो फिल्म है वो प्रॉपर हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि ड्यू। अब आप इसमें ये समझो, आप थोड़ा ये अपने अपने जो एंड यूजर है उससे ये आप पूछो कि इसका फ्लैश ऑफ टाइम क्या है। कोई भी चीज जब क्योर होती है देन देयर सम फ्लैश ऑफ टाइम आल्सो, वो आप देखो है। उसके अलावा आप ये समझो, क्या आप कोई ऐसा एडिटिव यूज करते हैं जो मॉइस्चर सेंसिटिव है, मे बी सम काइंड ऑफ सिलिकॉन्स आप लेवलिंग के लिए डाल रहे होंगे, मे बी सम काइंड ऑफ डिफॉर्मर्स यूज कर रहे होंगे, वो आप नॉर्थ में यहाँ पे सभी फॉर्मुलेशन में डीए डालते हैं सर। तो सर वही अब सर अब आप देखो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अब मेरे आई विल टच यू यहाँ पे सर जितनी भी सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग होती है नॉर्थ इंडिया में, उनका फिक्स फॉर्मूला है सबका कि 2% वो डीए डाल देते हैं कि जो भी कोई मॉइस्चर है वो उसमें से निकल जाए, उससे मर जाएगा। ठीक है सर। देखो राजेश गावड़े जी भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, राजेश जी, क्योंकि वरुण जी हमारे डेल्टा से हैं और वो एडिटिव की बात जरूर करेंगे, मुझे पता था, लेकिन कोई बात नहीं, ये पॉइंट भी है राजेश गावड़े जी। सर मॉइस्चर का कहीं ना कहीं रिएक्शन है, वो टच हो रहा है। देखो है तो रीजन मॉइस्चर ही, और कोई दूसरा रीजन ही नहीं है। बस राजेश जी अपने को अनम्यूट कीजिए सर। मैं हूँ एप्लीकेशन फील्ड से, पिछले 30 साल से प्लास्टिक पेंटिंग ही कर रहा हूँ। यस, ये अब सही व्यक्ति हाथ में आया हमारे, बोलिए सर। नॉर्मली होता क्या है, कॉम्प्रेस्ड एयर का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। कॉम्प्रेस्ड एयर का टेम्परेचर डाउन होने के बाद जब आपके गन से, नोजल से जब हवा निकलती है, वो रेगुलर टेम्परेचर से -7 डिग्रीज पे जाती है। अच्छा, इन विंटर्स। हाँ, गन में से जब हवा निकलती है, अगर पीछे 30 डिग्री से कंप्रेसर से हवा आ रही है अंदर, हाँ। तो वो 23 डिग्री आ जाएगी। अगर आपके नॉर्थ में, मैं पुणे की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ में अगर वो 25 या 22 पे होगा तो उससे -7 करेंगे तो उतना ठंडा आएगा। इट्स कोएफिशिएंट ऑफ, ये बोलते हैं उसको, थर्मल कोएफिशिएंट, जो आपका -7 डिग्रीज तक वो जाएगा। -7 डिग्रीज में जब आपका पेंट बाहर निकलेगा तो वो डेफिनेटली आपके सरफेस के ऊपर पानी छोड़ेगा। पानी छोड़ेगा मतलब एक लेयर मिलेगी उसको। जब आपका पेंट उसके ऊपर जाएगा, तो अभी इसमें बहुत सारे रीजंस है। आपका थिनर पानी खींचने की उसकी ताकत है, वो तो वो पानी खींचेगा अंदर। हार्डनर आपका पानी खींचने वाला ही है। तो ये सब चीजें जब पानी खींचेंगे तो ये कहाँ तो भी स्टोर होगा, और जब क्योर होगा तो ऊपर की फिल्म क्योर होगी और ये पानी बाहर आएगा बाद में। तो इसका रेमेडी क्या है सर? अभी सर बोल रहे हैं डीए, तो डीए अगर पीयू सिस्टम है तो उसमें डीए नहीं डाला जाता, बीजीए वगैरह डाला जाता है, ब्यूटाइल ग्लाइकोल वगैरह। डीए हम नॉर्मली एक्रेलिक्स में डालते हैं। और अभी डॉक्टर जी ने बताया वो बड़ा परफेक्ट चीज है आपको। हम तो नॉर्मली इसको 24 आवर्स रखते हैं बाहर, 24 आवर्स, क्योंकि हमको बफिंग भी करनी पड़ती है ऑटोमोटिव सेक्टर में। तो बफिंग करने के लिए उसको 24 आवर्स रखना पड़ता है, अदरवाइज यू विल गेट पैची फिनिश ऑन दैट सरफेस। बिल्कुल सही। नहीं, ये सर मैं बात कर रहा हूँ राजेश जी ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आप ओईएम की बात कर रहे हैं, एक ओईएम के अलावा भी सेकंड वाला जो मार्केट है, जहाँ पे सेकंड रिपेयर में के लिए आता है, मैं उस वाले सेगमेंट में बोल रहा हूँ, वहां पे इतना ज्यादा है नहीं सर।
नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमने लोग ओईएम की बात की थी ना कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहती है, ओईएम्स में आ जाता है ऐसे। कुछ होंडा की बात नहीं, की थी हमने, चलो उसकी बात कुछ मनीष लोकल जी, सप्लायर मनीष जी, है वो let it OEM be जी for डॉक्टर सेकंड का SME मार्केट भी है ना segment. सर, Let it सेकंड be for मार्केट है, SME segment. आप पेंट तो सीएनपी का ही ले रहे हैं ना वहाँ पे। हाँ वहां थोड़ी के देखो, जो आप ordinary चाहे market एसएमई में थोड़ी कम की चीज बात होती है। करो, चाहे ओएम की बात करो, चाहे रिफिनिश की बात करो, जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल रहने वाला है, हाँ वो राइट, बदल नहीं जाएगा कहीं पर ठीक। भी। ठीक है, सो अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर देखो विंटर सीजन है, कोशिश ये करो कि ऐसा थिनर यूज कर लो जिसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ना हो। फर्स्ट थिंग इज दैट। Second one is if it has some solvent in that which takes or which takes this moisture and evaporates from the system. Third one is the substrate temperature at the time of packing. देखिए आलोक जी, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि नहीं जी हम तो अपनी मर्जी से पैकिंग करेंगे, कोटिंग करेंगे और आप हमको ऐसा टकाटक माल बना करके दे दो। जब ये मौसम बदल रहा है तो कोटिंग वाले ने तो कोटिंग वही बना के दी, तो एप्लीकेशन वाले को अपना एप्लीकेशन, पैकिंग वाले को अपना पैकिंग टाइम, दोनों चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा लगता है कि पैकिंग टाइम जो है विंटर्स में तो थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो रिडक्शन इन टेम्परेचर है, जैसे ओवन से मटेरियल निकला 90 डिग्री पे रहा था 30 मिनट तक, अभी वो ओवन से निकला और आपने इमीडिएट उसको जो कूलिंग का जो प्रोसेस है ना उसको टाइम नहीं दिया, आप इमीडिएट कूल डाउन होने देंगे, ग्रेजुअल कूल डाउन होने देंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आज का टॉपिक जो है ये वाला तो आलोक जी, क्योंकि मुझे पता है आलोक जी कभी भी एक टॉपिक लेके आएंगे तो उसमें समय लगता है और हमारा वेबिनार कंप्लीट हो जाता है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कस्टमर की जेन्युइन कंप्लेंट थी सर। नहीं, मैं समझता हूँ सर ये कंप्लेंट होती है और आमतौर पे स्टोविंग पेंट जितने बनाने वाले हैं वो होता क्या है कि कंप्लेंट आती है स्टोविंग पेंट बनाने वाले को और वो शिकायत करते हैं कि आपका कोकोनट खराब है। हाँ, वो एल्किड रेजिन वालों को ही हाँ, वो सीधा सीधा रेजिन वाले पे दोष डालते हैं कि भैया आपके कोकोनट के अंदर जो है वो मॉइस्चर था, इस वजह से हमारे को प्रॉब्लम आ रही है और वो आपकी पेमेंट रुक जाती है। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो रीजन ये देते हैं कि आपका थैलिक क्योर नहीं हुआ या आपके प्रोसेस में एल्किड बनाने में कहीं थैलिक प्रॉपर्ली या कुछ अनरिएक्टेड रह गया। सर इसका एक आपको मैं बिल्कुल कि एक मैं बोलूं प्रैक्टिकल आंसर देता हूं। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना तो इसमें 80% रोल थिनर का रहता है। 80% रोल थिनर का रहता है, उसके बाद में बाकी चीजें कवर होती हैं। और ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम आती है, अगर मैं आपकी बात करूं, क्योंकि ये 2 कोट करते हैं, एक बेस कोट करते हैं और उसके बाद एक क्लियर कोट जरूर मारते हैं। हाँ, क्लियर कोट उसमें आती है। ठीक है सर, दो ये क्लियर कोट जब मारते हैं तो क्लियर कोट के अंदर भी वो प्रॉपर थिनर यूज नहीं करते हैं, वो नॉर्मल थिनर यूज कर लेते हैं, जहां पर इनको एक प्रॉपर थिनर बना हुआ यूज करना चाहिए। या यूं कहें कि अगर टॉलविन भी यूज करते हैं तो भी ये इनका ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिकलिटी में देखा है वो हमेशा क्लियर के अंदर वो बादल सा और वो फॉगीनेस और वो चिपकना और इनके जो नीचे स्टिकर्स रहते हैं उसके आसपास रिंकल बनना, ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ जाती है सर। नहीं, गौरव जी का हमेशा सहयोग रहता है सर। और हाँ। वो चाहे भले बॉम्बे गए हो पर वो हमारे नॉर्थ के हर एक कस्टमर को गौरव जी का पूरा सहयोग मिलता है, 24 घंटे मिलता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल 24/7 बिल्कुल मिलता है हमारे सर, बिल्कुल कस्टमर मिलता है। बिल्कुल कभी भी पूरे अधिकार से गौरव जी से बात कर लेते हैं। नहीं, सही बात है सर, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वैसे अच्छा, एक ललित चौधरी जी ने जो क्वेश्चन किया था वो ये अपना सेल्फ हीलिंग पीयू कोटिंग पे किया था, उनका एक क्वेश्चन बीच में रह गया था। वो पूछना चाहते हैं सर ये जो सेल्फ हीलिंग कोटिंग है, पीयू कोटिंग जो है, ये आम कोटिंग से एक्सपेंसिव होती है क्या, या इसमें बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है? बहुत एक्सपेंसिव। देखिए जो जैसा अभी मिस्टर बालोजी ने बोला था जी, मैं फिर से वही बोलना चाहूंगा कि ये कोटिंग बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। देखिए इसके लिए बहुत एफर्ट्स लगेंगे बनाने में, क्योंकि ये कोटिंग हमेशा कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी के बेसिस पे चलेगी और उसमें दोनों तरीके के माइक्रो इनकैप्सुलेशन का रिक्वायरमेंट होगा। और पॉलीयूरिया एक्चुअली क्या है, पॉलीयूरिया इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पॉलीयूरेथेन। आप पॉलीयूरेथेन केमिस्ट्री छोड़ करके जब ऊपर बढ़े तो यूरेथेन लिंकेज के अंदर आप यूरिया लिंकेज में पहुंच गए, है ना, एस्पार्टिक लिंकेज में पहुंचे। पॉलीयूरिया का इको फ्रेंड मतलब यूजर फ्रेंडली वर्जन बनाया तो हमने पॉली एस्पार्टिक कह दिया उसको। देखो कहानी वही है, पॉलीमराइजेशन ही कर रहे हैं और क्योरिंग आइसोसाइनेट से ही कर रहे हैं,
बिना आइसोसाइनेट के कोई क्योरिंग नहीं है, और आइसोसाइनेट जब भी किसी पॉलीमर के साथ में जुड़ेगा तो एक यूरेथेन लिंकेज बनाएगा ही बनाएगा। तो वो अल्टीमेटली जो है वो बनता यूरेथेन लिंकेज ही है। अभी उसको हमको बेचना है और आपको खरीदना है और आपको भी आगे बेचना है, तो जब तक कुछ नया नाम नहीं देंगे आप कैसे खरीदोगे? मेन चीज है ना, चार पैसे तो हमें भी कमाने ना, इतनी रिसर्च की, इतनी पढ़ाई की, इतनी रिसर्च की, और कंपनी इतना पैसा दे रही है, तो वो कमाई तो कहीं ना कहीं चाहिए ना। तो उसके लिए देखिए पॉली यूरिया कोटिंग जो आप सेल्फ हीलिंग के अंदर बात कर रहे हैं, तो सेल्फ हीलिंग चाहे इपॉक्सी कोटिंग रही हो चाहे सेल्फ हीलिंग पॉली यूरिया कोटिंग रही हो, दोनों कोटिंग एक्सपेंसिव ही बनेंगी, नॉर्मल नहीं बन सकती हैं, नॉर्मल के प्राइस में नहीं बन सकती। हमारे साथ दीपांशु सिंह जी हैं, उन्होंने एक आंसर दिया है, वो मैं चाहूंगा दीपांशु जी आप अनम्यूट होके कुछ बात करें ना सर प्लीज। दीपांशु जी, दीपांशु सिंह जी, बेटा उसमें कर दो, दीपांशु सिंह जी अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। इन्होंने मॉइस्चर स्कैवेंजर्स के ऊपर बात बताई है हमें। दीपांशु जी आप बोलना चाहेंगे? हेजिटेट मत करो सर, हमारे साथ जितने भी लोग हैं सब एक परिवार का हिस्सा है, तो हमें आगे आकर बढ़ चढ़ कर बोलना चाहिए। और हम किसी स्टेज पर तो खड़े नहीं है, हम लोगों के बीच में एक दूसरे के सामने है, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं उसी तरीके से हम बैठे हैं। तो अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो उसको बांटना चाहिए सर। आपने मुझे लिख के भेजा है कि यूज मोनो ऑक्साडेलिन बेस्ड मॉइस्चर स्क्वेंजर्स टू प्रिवेंट मॉइस्चर रिलेटेड डिफेक्ट्स। तो आलोक जी आपका ये और एक आंसर आ गया आपके लिए, ये भी एक तरह से आपके लिए फायदे की चीज ही बता रहे हैं कि ये आप मोनो ऑक्सीडिलिन बेस्ड मॉइस्चर स्कैवेंजर्स यूज कर सकते हैं। दीपांशु सिंह जी ने हमारे को ये जवाब भेजा है सर। थैंक यू सर। और आगे बढ़े तो ओके, क्लेमेन, Hindi shall be great to speak. Okay, sir, we will try to speak in English, sir. Clement, sir, and we are speaking very much in English, but sometime we got our mother language in between our English and people, so we have to use that. And Nikhil ji, at what extent castor oil is getting used in the industry? Castor oil, at what extent castor oil is getting used in the industrial coating? कैस्टर ऑयल यूज हो रहा है सर क्या? कैस्टर ऑयल इज यूजिंग, पीपल आर यूजिंग इट। मंजीत जी जवाब दोगे? इंडस्ट्रियल कोटिंग मतलब ऑटोमेटिक कोटिंग की बात करें, इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियल कोटिंग की बात हो रही है सर कि क्या कैस्टर ऑयल यूज होता है क्या? अभी आजकल यूज होना शुरू हो गया क्या? ये तो खैर एक तरह से फॉर्मुलेशन का हिस्सा भी कह सकते हैं इसको, यहाँ कुछ चलिए आंसर तो लेंगे। एक्चुअली ऑयल लेंथ के हिसाब से देखें तो कैस्टर ऑयल और लिंसीड ऑयल ये मतलब जनरल अल्किल रेजिन में इनकी ऑयल लेंथ और इसकी मतलब कि ये जो चेन होती है, बॉन्डिंग चेन ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसकी लाइफ ज्यादा होती है, लोग यूज करते ही है। हाँ, फास्ट ड्राइंग में कैस्टर यूज नहीं होता क्योंकि कैस्टर नॉन ड्राइंग होता है अपने आप में। ओके, कैस्टर ऑयल जो है एक्चुअली कैस्टर ऑयल का अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर देखो तो उसमें 12 हाइड्रोक्सी ओलिक एसिड है, मतलब उसके जो कार्बन चेन है उसमें 12 नंबर जो कार्बन चेन है उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। और उसका एक और बड़ा दो इसके 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 फायदे और वो हैं। एक तो बड़ा ब्राइट फिल्म बन सकती है कैस्टर ऑयल से, बट उसमें ड्राइंग का रहता है, तो ड्राइंग के लिए इधर मॉडिफिकेशंस कम्स राइट। वो हाइड्रोक्सिल इटसेल्फ इज अ वेरी गुड गॉड गिफ्ट, बहुत अच्छा गॉड गिफ्ट है, और पेंट इंडस्ट्री बहुत बखूबी यूज कर रही है। और आजकल मैं कुछ और भी सुन रहा हूँ कि कुछ लोग इसी के डेरिवेटिव्स बना बना के उन्हें लाइक यूरेथन केमिस्ट्री पे भी लोग पॉलीऑल्स में भी इसे बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका बहुत वास्ट यूज है कैस्टर ऑयल का। एज सच ऑयल नहीं यूज होता है, बट जनरली आरडीसीओ टाइप हो गया या एल्किड हो गए या आपका एनसी डेरिवेटिव्स में कुछ लोग यूज करते हैं उससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज हैं इसके आप, बट जो जो लोग रेजिन बनाते हैं, बाइंडर्स बनाते हैं, बाइंडर केमिस्ट्री को समझते हैं, वो इसे बखूबी यूज कर रहे हैं। मणिशंकर जी बोलना चाहेंगे कुछ? जी मनीष जी, इन्होंने सही बोला कि एक्चुअली जो भी अभी जो टेक्नोलॉजी है इंडिया की, उसमें तो काम कर ही रहे हैं, और मलेशियन टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी। वो लोग 2-3 साल पहले ही कैस्टर ऑयल को पीयू बेस कोटिंग से लेके
पीयू बेस्ड कोटिंग में एक्चुअल ये पार्ट होता है पीयू, जो बाइंडर बनते हैं उसके लिए, तो ये एक्चुअल यूज होता है, फॉर्मुलेशन में डायरेक्टली यूज भी। फाइनल कमेंट डॉक्टर साहब से लेते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गौरव सर। हाँ जी मनीष जी, मैं ये इधर ही हूँ। जी जी। देखिए ऐसा ना, कैस्टर ऑयल अभी दोनों लोगों ने बहुत अच्छा बोला। वरुण ने तो पूरा खोल के रख दिया उसको, कैस्टर ऑयल को। कैस्टर ऑयल क्या है? कैस्टर ऑयल को आप डिहाइड्रोजिनेशन करा लो, रेजिन बन जाएगा। मैलिक पेंटा और इसके साथ में रेजिन बन गया। एल्किड रेजिन बनाते हैं, कैस्टर ऑयल बेस्ड एल्किड रेजिन आते हैं। उसमें अगर इपॉक्सी फंक्शनैलिटी डाल दी तो इपॉक्सी कैस्टर ऑयल मॉडिफाइड इपॉक्सी रेजिन बन गया। उसको ग्लाइकॉल के साथ में एसिड बेस रिएक्शन में लेके चले गए तो आपको यूरेथेन लिंकेज मिल जाएगा, जो 2 स्टेप रिएक्शन होती है बेसिकली। इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सो मॉडिफिकेशन, नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस अवेलेबल है, नंबर ऑफ एल्किड रेजिन्स अवेलेबल है कैस्टर ऑयल पे बेस। और सी, कैस्टर ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बाई केमिस्ट्री बहुत वर्सेटाइल है, तो उसे हम बहुत सी जगहों पे यूज कर सकते हैं। बट अगर आप केवल ऑयल लेके आओगे तो यूज नहीं कर सकते। उसको या तो हमें ब्लोन करना पड़ेगा, या उसको हमको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, या उसमें रोजिनेटेड फंक्शन, मतलब उसको रोजिनेटेड करना पड़ेगा। देन मतलब ड्राइंग प्रॉपर्टी लानी है ना। कैस्टर ऑयल इज नथिंग मीन्स, अगर आप अगर पुराने समय में चलते हैं बात करने के लिए, तो कैस्टर ऑयल को पैरों पे लगाया जाता था। जहां पे दर्द होता है वहां कैस्टर ऑयल लगा दो, बहुत बढ़िया काम करता है और बहुत अच्छा लुब्रिकेशन देता था कैस्टर ऑयल। आज के जमाने में तो बंद हो गया। कैस्टर ऑयल को हिंदी में अरंडी का तेल बोलते थे शायद, और उसमें उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती थी। अगर आप उसको कहीं पे भी यूज करते थे तो वो ऑयल बहुत टाइम तक मौजूद रहता था सरफेस पे। दैट मीन्स उसके अंदर ड्राइंग प्रॉपर्टी बहुत कम थी। सो उसको ड्राइंग प्रॉपर्टी के लिए देखिए आपके पास 2-3 तरीके हैं। या तो आप उसको डिहाइड्रेट कर लीजिए, उसके जो डबल बॉन्ड्स उनको तोड़ दीजिए, ऑक्सीडेशन के अंदर ले जा सके अगर आप उसको, तो वो काम करेगा। सेकंड, ऑक्सीडेशन के अंदर ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम उसको हीट करते हैं रफली, जो बहुत पुराना मुझे याद है, आजकल का तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आज भी मेरे ख्याल से यही प्रोसेस होगा कि 200 डिग्री 180 200 डिग्री के आसपास में उसको हीट किया जाता था। हीट करने के बाद उसके अंदर रोजिन ऐड करते थे, पेंटा ऐड करते थे, और फिर लास्ट में उसको मेरे ख्याल से एनहाइड्राइड ऐड करके और हम रेजिन बना लिया करते थे। तो ये तो पहला तरीका था कैस्टर ऑयल को यूज करने का। दूसरा तरीका ये आया कि भाई कैस्टर ऑयल के अंदर अगर फंक्शनैलिटी है तो उसके अंदर हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी क्यों ना डाल दें। भाई यूरेथेन बनेगा कैसे, आइसोसाइनेट से रिएक्ट करा दो। आइसोसाइनेट से रिएक्ट कराने के लिए क्या चाहिए, आप अपने पॉलीमर के अंदर OH फंक्शनैलिटी डाल दो। OH फंक्शनैलिटी कहां से आएगी, ग्लाइकॉल से आएगी। कैस्टर ऑयल का वो प्रोडक्ट उठाया, पहले स्टेज में कैस्टर ऑयल एल्किड बनाया, ग्लाइकॉल और एसिड के साथ में रिएक्ट कराई, एसिड फंक्शनैलिटी डाल दी, और एसिड फंक्शनैलिटी डाल करके यूरेथेन से क्योर करा लिया। तो हम उसको यूरेथेन कोटिंग कहने लगे। बहुत अच्छी कोटिंग बन रही है आजकल के टाइम में, सस्ती पॉलीयूरेथेन कोटिंग बन जाती है उससे। मतलब कैस्टर ऑयल हर इंडस्ट्रियल कोटिंग में यूज हो रहा है सर। निखिल जी का एक क्वेश्चन था। निखिल जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको भाई आपने नाम सुना है ना RDCO? हाँ, तो और है क्या वो? हाँ, रोजिनेटेड डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल। हाँ वही तो है। नहीं, इंडस्ट्रियल कोटिंग में मेरे ख्याल से, निखिल जी आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे सर, इंडस्ट्रियल कोटिंग से आपका क्या मतलब था सर? निखिल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर। हेलो जी निखिल जी, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए। sir, I am pursuing PhD at CSR IICT Hyderabad. So I am pursuing PhD at CSR IICT Hyderabad. Oh, okay. So out of my interest, I asked, my work is on castor oil, UV curable coatings based on castor oil. So for that purpose, I asked. Good. This is very good, Nikhil. We always appreciate people like you asking some questions related to their PhD or some educational questions. Rather, this answer will help each and everyone who is dealing in professionally dealing in castor oil. तो डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छा जवाब दे दिया उनको। डॉक्टर साहब निखिल को कुछ कहना चाहेंगे? Nikhil, that's good. You are working on castor oil. Castor oil means, if you are, I'm not sure in which direction you are working, and since it is your PhD work, I would not emphasize more on that. But if you are working and it's good,
if you are working on designing a new modification in castor oil or revalidating the existing one, that's very good. Congratulations. निखिल, थैंक यू सर, थैंक्स। ग्रेट टू हैव यू। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो और कुछ आप जानकारी लेना चाहते हो? अरुण लांजेवार जी हमारे साथ हैं बहुत दिनों के बाद। सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अरुण, एक और मनीष जी एडवांटेज, नया एडवांस वो आया है जी कि नाउअडेज इन यूरोप एंड इन यूएस they are now grafting acrylates on castor oil. Okay. So this is a new type of chemistry. अच्छी लाइन होगी निखिल के लिए। Yeah. So that is a binder. They are using it as a binder for exterior paints. Oh, okay, okay, okay. Yeah. अरुण जी, अरुण लांजेवार जी, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। कलर सोसाइटी गेव यू अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लेकिन सर इतने बुजुर्ग तो आप हुए नहीं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैसे? Thank you so much, sir. बट सर आप तो जवान हो सर, यू आर यंग, वेरी वेरी मच यंग पर्सन। Thank you so much. Award नहीं सर, you are great entrepreneur and great you know something you want to know more and more. मुझे याद है कि आप कोई भी वेबिनार मिस नहीं करते थे हम लोगों का, जब भी हम लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल कोविड में किया था। सर नाइस टू सी यू सर। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, हमारा 10 और 11 मई को दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल कोटिंग और वाटर बेस्ड कोटिंग के ऊपर कॉन्क्लेव है, जिसके कुछ टॉपिक्स हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक जैसे मैंने स्टार्ट किया था पॉलीसिलाजिन कोटिंग के ऊपर था, जिसमें ज्यादा हमें क्वेश्चन नहीं मिले। हालांकि मैंने क्वेश्चन सभी जनरल इंडस्ट्रियल कोटिंग के ऊपर पूछे थे, बट पीपल आर मे बी इंटरेस्टेड इन पॉलीसिलाजिन कोटिंग, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद दैट ओनली। बट ज्यादा क्वेश्चन हमें नहीं आए, ऑल्दो हमारे साथ जितने भी टेक्नोक्रेट हैं हमारे, उन्होंने जवाब दिए। बालाजी सर ने जवाब दिए, डॉक्टर गौरव ने जवाब दिए। एंड ये एक ऐसी कोटिंग है जो आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। स्क्रैचलेस कोटिंग रहती है दिल्ली मेट्रो के अंदर। जैसे डॉक्टर साहब ने रेलवे की बात करी, तो हमारे साथ एक हमारे बड़े प्रिय मित्र आज शायद नहीं जुड़ पाए हैं, उन्होंने काफी समय पहले पॉलीसिलाजिन कोटिंग बनाई थी। हमारे कनौजिया जी हैं, अनुराग कनौजिया जी, वही हमारे साथ शायद नहीं आज जुड़ पाए हैं। बट ये मेट्रो के लिए कोटिंग बनी हुई है, और ये जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि स्क्रैचलेस कोटिंग भी रहती है। 4 माइक्रो तक की इसकी कोटिंग की एक इसका जो रहता है 4 माइक्रोन तक रहता है। और इसके अलावा इसके और भी कई सारे प्लसेस हैं जो आपको हम लोग हमारे कॉन्क्लेव के अंदर बताने वाले हैं, इसके ऊपर डिस्कशन भी होगा। एंड इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग लेंगे इंडस्ट्रियल कोटिंग के और वाटर बेस्ड कोटिंग के। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पेंट विजन को आप सपोर्ट करते रहे, हम लोग ऐसे ही नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। और नेक्स्ट वीक भी आप में से भी कोई, आई ऑलवेज इनवाइट ऑन दिस प्लेटफॉर्म एनीवन, आप में से कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहे, अपना कोई भी टॉपिक, कोई भी बात इंडस्ट्री तक पहुंचाना चाहे, यू ऑल आर वेलकम, मोर देन वेलकम। और मेरे साथ पिछले कई हफ्तों से जो लोग जुड़े हैं, उनमें से कई लोगों ने हमें अप्रोच भी किया है, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि लोगों को हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने का जो इनवाइट दे रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है, एंड पीपल आर ज्वाइनिंग अस। एनी वन ऑफ यू, इवन वी नो ईच अदर और नॉट, वो मैटर नहीं करता, बस आप पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, पेंट इंडस्ट्री के आप एक कलीग, हमारे कलीग हैं और पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कोई भी आपके मन में बात हो पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, कोई आप कहना चाहें, बताना चाहें, तो आप जरूर हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते हैं इस प्लेटफॉर्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ललित चौधरी जी एक चीज और पूछ रहे हैं, सर बायो बेस्ड प्रोडक्ट आर यूज्ड फॉर ऑटोमोटिव कोटिंग्स बट प्रॉपर्टीज इज नॉट गुड देन सिंथेटिक रेजिन। बायो बेस्ड प्रोडक्ट आर यूज्ड फॉर ऑटोमोटिव कोटिंग। आलोक जी कहना चाहते हैं, आलोक जी प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। हाँ नमस्कार सर, मेरा ये कहना है मनीष जी, हमारे कई कस्टमरों में पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ सर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, तो उनको फ्री ऑफ हाइड्रोकार्बन कोई भी कोटिंग चाहिए सर।
जैसे वहां जितने मल्टीनेशनल कंपनीज है या जितने डिपार्टमेंटल स्टोर है यूरोप में, अमेरिका में और बाहर, उनको फ्री ऑफ हाइड्रोकार्बन कोई भी कोटिंग, हाइड्रोकार्बन फ्री कोटिंग जी। तो मेरा ये कहना है सर जी, कि वहां पे जो जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, जो रीच हो गया या बाकी कोई स्टैंडर्ड्स, वो सब उस पूरे पैरामीटर में पास होना चाहिए। उसके ऊपर आप 1 या 2 सेमिनार करिए सर। सिर्फ इंडियन मार्केट तक ही सीमित रहेंगे आप ना, तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, हम लोग कोशिश, ये मार्केट तो कभी भी कैप्चर कर लेंगे सर। बिल्कुल ठीक बात है सर। नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, ग्लोबली जो प्रोडक्ट है हम लोग लेके आने की कोशिश करते हैं, और कई ऐसे हमारे बीच में बातें करते करते कई ऐसे प्रोडक्ट निकल आते हैं जो ग्लोबल मार्केट के अंदर, अभी जैसे मैंने अभी ये बात की है। मनीष जी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे किसी आदमी को सप्लाई करनी है तो DGSND, रेलवे और ये जो है वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी आप वो टेंडर और पूरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आप इंडियन स्मॉल स्केल पेंट कंपनीज को ये बताइए कि उनको यूरोप या बाकी जगह अपना पेंट एक्सपोर्ट करना है तो कौन से पैरामीटर्स और कहां से अप्रूवल लेना है, ये एक बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बात बोली है, तो इसके ऊपर वर्किंग बिल्कुल करूंगा सर मैं। मतलब एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या नॉर्म्स चाहिए, रीच सर्टिफिकेशन चाहिए या उनके स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट से या कौन कौन से आपको पहले से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जी, या वो टेस्टिंग और वो सब कुछ रहता है ना सर, उसको रीच सर्टिफिकेट या कुछ और बोलते हैं सर उसमें, ठीक है। उसके खूब सारे सर्टिफिकेशन रहते हैं। अगर उसके बारे में पूरा प्रोसेस पता चल गई ना सर अपने स्मॉल स्केल सेक्टर्स में, तो उनको एक अलग से वो मार्केट खुल जाएगा सर। नहीं सर, हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं, और कई जगहों पे हमारी मीटिंग्स कुछ चलती हैं, कुछ इस बारे में बातचीत होती है, लेकिन जब कुछ कंक्रीट नहीं निकल के आता तो मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ। हम लोग लगातार इस पे वर्किंग कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट के अंदर MSME कैसे आगे बढ़ सकती है और किस तरह से हम लोग हेल्प आउट कर सकते हैं MSME इंडस्ट्री को सर। इस पे वर्किंग जारी है। लांजेबाजी कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, ओके। इस टॉपिक एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेता हूं। Bio-based product are used for automotive coatings, but properties are not good than synthetic resin. तो bio-based product, डॉक्टर साहब, डॉक्टर गौरव सर, bio-based product ऑटोमोटिव कोटिंग में यूज हो रहे हैं, जबकि सिंथेटिक रेजिन की दे आर नॉट गुड एज सिंथेटिक रेजिन। आप इस बारे में रोशनी डालना चाहेंगे सर? जी देखिए, बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स पर अभी 100% बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी कोई पॉलीमराइजेशन हो नहीं रहा है। जो भी पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो पार्शियल पॉलीमराइजेशन हो रहा है। एंड अभी इस टेक्नोलॉजी को एक इंडिया के अंदर बहुत कम कंपनियां हैं जो बायो बेस्ड प्री पॉलीमर्स लेकर के आई हैं, और उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। सूनर और लेटर यहाँ पर भी इस तरीके की कोटिंग्स डेवलप होंगी जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सारे नॉर्म्स को पास करेंगी। यस, मैं अभी जस्ट इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी बायो बेस्ड कोटिंग्स जो इंडिया में, या जो प्री पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है, या जो प्री पॉलीमर्स आ रहे हैं जिनसे हम पॉलीमर्स बनाएंगे, तो अभी सिर्फ पार्शियल रिप्लेसमेंट के उसमें चल रहा है। इंडिया में जिस दिन ऐसा लेजिस्लेशन आ जाएगा कि या रेगुलेशन आ जाएगा कि आपको बायो बेस्ड कोटिंग्स को यूज करने पर या बायो बेस्ड कोटिंग बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करने के ऊपर आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा, डेफिनेटली उस दिन जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं वो भी नीचे आएंगे, और जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी कोटिंग को भी और उतना ही ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे as per the things. And bio-based products right now, they are, means pre-polymers are little costly than the synthetic polymers. So इसके ऊपर भी एक वर्किंग होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, ऑलेक्स रेजिन भी इसके ऊपर काम कर रहा है। देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्री पॉलीमर जो देने वाले हैं। इवन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर के आई हैं जो बायो बेस हैं। Those are not 100% bio-based, but they have a certain amount of pre-polymers in that. So the working is going on. I see down the line 5 years we will match what the market is expecting in terms of finish quality and the parameters, especially parameters. ललित चौधरी जी, आपका किस वे में ये क्वेश्चन था सर, उसको आप आगे और बता पाएंगे क्या? ललित चौधरी जी, ललित जी बोलना चाहेंगे कुछ क्या? जी ललित जी। यस सर। जी बोलिए। हाँ सर, मेरा बायो बेसिक ऑफ द रेजिन है, से मेरा टॉपिक है सर मेरा। अच्छा, आप भी स्टूडेंट हैं? यस सर, स्टूडेंट है ICT एमटेक सरफेस कोटिंग। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, अच्छा है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके कुछ क्वेश्चंस आपके आंसर शायद आपको मिल जाते होंगे, और हमें भी अच्छा लगता है कि Nikhil, I think you should, if you are working in bio. ललित चौधरी सर, ललित चौधरी।
ललित चौधरी। Lalit ji. So Mr. Lalit, if you are working on bio-based epoxy resins, you Yes, should sir. work on some to improve their cross-linking density. Because if you are not improving the cross-linking density, then the property will not match even in any of the things. So it's just not only about the part A, means the resin. It also goes with the part B also. So some high functionality hardness will help you in that case. ओके सर, Yeah. थैंक यू चलिए सर। सर, राजेश गावड़े जी मेरे ख्याल से चले गए हैं, लेकिन वो एक क्वेश्चन लिख के गए हैं या है मुझे पता नहीं है। ही इज आस्किंग दैट हाउ टू गेट ऑरेंज पील वैल्यू 7 to 8। Orange peel value 7 to 8. हाँ My राजेश जी, सर means आस्क द क्वेश्चन सर। you want to reduce the orange peel or you want to increase the orange peel? राजेश जी, I want to reduce the orange peel because nowadays people are asking for 7 to 8 values and DOI is we are getting DOI good, but orange peel we are restricting it to 4 to 5 with OP meter. वही SW और अपना इसका जो मीटर रहता है। So you want that improvement from manufacturer or you want that improvement from application? Both sides sir, एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं, दोनों हाथ से तो बजानी पड़ेगी। बिल्कुल। सी देखिए, ऑरेंज पील अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो द बेस्ट थिंग इज एज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग साइड योर डॉक्टर साहब एक मैन्युफैक्चरर यहाँ पे एक मिनट आपसे मैं 2 मिनट माफी चाहूंगा। मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा, हो सकता है मेरे साथ और भी लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑरेंज पील वैल्यू होती क्या है। थोड़ा उससे स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा सर, थोड़ा 5-10 मिनट उसको भी दे दें। सबको पता होगा, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी है, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, तो हो सकता है मेरे जैसे लोग और भी होंगे जो जानना चाहते हैं ऑरेंज पील वैल्यू क्या होती है। जी डॉक्टर साहब। No. So first thing is that in that Mr. Rajesh will elaborate on the orange peel, how he is measuring the orange peel. Then I will continue. राजेश on जी, that. ऑरेंज पील वैल्यू क्या होती है सर, उस पे आए पहले, वहां से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा लोगों को भी सर। राजेश जी, नॉर्मली क्या होता है अभी तक जो पीछे का जमाना था, एक 4-5 साल पहले, तभी 3 तक का वैल्यू अलाउड था। अभी जब से बाहर के कंट्रीज के कार मैन्युफैक्चरर्स अंदर आए हैं, तब से हमारा ऑरेंज पील का वैल्यू 5-6 तक जा चुका है। नहीं मतलब ऑरेंज स्मूथ पील वैल्यू होती है क्या सर? मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सर, थोड़ा ये बेसिक क्वेश्चन है सर। इक्विपमेंट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इट इज फ्रॉम 0 to 10। 10 इज लाइक अ मिरर। ऑरेंज पील अच्छा, मतलब हमारे ऑरेंज के ऊपर जो खड्डे खड्डे दिखते हैं, वो टाइप का फिनिश। इट इज नॉट अ डिफेक्ट बट इट इज इफेक्ट ऑफ पेंट एप्लीकेशन। Okay. तो Now ये I will जितना come. स्मूथ होना है। Now I वरुण will जी भी come कुछ on कहना that. चाहते हैं। Are you referring for light reflection value rather than orange peel value, LRV? लाइट रिफ्रेक्शन आप DOI की बात कर रहे हैं ना, डिस्टिंग्विशनेस ऑफ इमेजेस। हाँ, distinguish of image, like more towards actual appearance, but it is a subjective value, is like absolute value is LRV. तो आई डोंट नो दैट एनर्जी। आपका जो एंड यूजर है वो क्या वैल्यू आपको किस एपरेटस पे बोलता है ऑरेंज पील सर वैल्यू? मुझे वो BOI के इंस्ट्रूमेंट का नाम याद नहीं आ रहा है, ओके, बट लाइट ही मैं आती मेरा है नीचे क्वेश्चन से। तो रह गया, मैं ऑरेंज बताता हूँ, पील वैल्यू होती क्या that है? instrument is named as wave scan meter. या That वेव is a स्कैन wave मीटर, scan meter. यस, करेक्ट। That is wave scan meter. We have used in early days. Now a number of modification has come in that wave scan meter. So earlier we were using wave scan meter. I think number was the 3. Wave scan meter number 3 that was used earlier. ऑरेंज पील वैल्यू क्या होती है सर? See, सर ये अब मैं वेव स्कैन मीटर में अब लेके आता हूँ इसके ऊपर। देखो हाँ। क्या होता है कि जब भी आप कोटिंग को अप्लाई करते हैं तो कोटिंग ड्राई होने के पहले लेवल आउट होती है। आप जब भी उसको स्प्रे करते हैं ना, तो स्प्रे क्या है, कंप्रेस्ड एयर के थ्रू होता है, ठीक है, और बहुत सारा सॉल्वेंट का पार्ट उसके अंदर होता है और सॉलिड पार्ट है, पेंट है, तो उसके अंदर पेंट जब हम बनाते हैं तो सॉलिड, बाइंडर और सॉल्वेंट, इनका कंपोजिशन होता है बेसिक, मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो। क्योंकि एडिटिव वगैरह ये सब फंक्शनैलिटी के लिए डाले जाते हैं उसके अंदर, कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए। तो ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग साइड से, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है एप्लीकेशन साइड से, जो एक और चीज हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो होती कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। तो जब आप स्प्रे करते हैं
तो स्प्रे करने के दौरान क्या होता है कि जो एयर, जो कंप्रेस्ड एयर है, वो रिपल क्रिएट करती है सरफेस के ऊपर, या जो पार्टिकल जाकर के डिपॉजिट होते हैं ना, वो डिपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है इनिशियल स्टेज में, जब वेट होती है फिल्म। तो जैसे ही स्प्रे होता है, वैसे अगर आप पैनल देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा इसमें बहुत सारे हिल और वैली बन रही है। अच्छा। हिल और वैली कैसी बनेगी? जैसे ऑरेंज के छिलके के ऊपर होती है। अच्छा। तो इसी वजह से उसका नाम दिया गया ऑरेंज पील। ऑरेंज पील का मतलब क्या? ऑरेंज का छिलका, पील का मतलब छिलका, और ऑरेंज का मतलब फल। तो ऑरेंज के फल के ऊपर जिस तरीके का अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, उसी तरीके का मूवमेंट होता है फिल्म के अंदर। जैसे स्प्रे होगा, वैसे अगर आप पैनल देखेंगे, तुरंत लाइट उसके ऊपर डालेंगे, तो आपको लगेगा कि वेव्स बन रही हैं इसके अंदर। सो वहां पर क्या होता है कि अब आपने स्प्रे कर दिया, तो पहला जो कोटिंग से जो सबसे पहला इंपैक्टेड है, वो क्या है? कंप्रेस एयर के थ्रू आने वाला जो माइक्रोनाइज पार्टिकल्स हैं पेंट के, वो आते हैं, डिपॉजिट होते हैं सरफेस के ऊपर। तो कहीं पे थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती, कहीं पे थिकनेस थोड़ी कम होती है। हम नेकेड आइज से उसको विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगर जैसे सपोज करिए आपने बोला कि आप 40 माइक्रोन की कोटिंग लगा रहे हैं, तो जिस समय स्प्रे हो रहा होगा ना, 100% हर जगह 40 माइक्रोन नहीं होगा, उसको लेवल आउट होने पे टाइम लगता है। कहीं पे वो होगा 38 माइक्रोन, कहीं पर होगा वो 35 माइक्रोन, कहीं पे होगा 32 माइक्रोन। तो वो लेवल आउट होता है। 2 4 5 माइक्रोन तो हम देख भी नहीं पाते हैं कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो इसलिए जब कोटिंग पैनल के ऊपर डीएफटी चेक की जाती है ना, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग डीएफटी आती है, 2-3 माइक्रोन का वेरिएशन आता है। फिर हम एवरेज आउट वैल्यू निकालते हैं और बोल देते हैं कि इसकी कोटिंग थिकनेस जो है एवरेज में इतनी होगी। अभी जो सबसे पहला फिनोमिना है, जो कंप्रेस्ड एयर उसके ऊपर आ रही है, क्योंकि वो एटमाइजेशन कर रही है पेंट का। एटमाइजेशन के बाद पार्टिकल डिपॉजिट हो रहे हैं। सो कहीं पे डिपोजिशन ज्यादा होगा, कहीं पे डिपोजिशन कम होगा, और कहीं पे पेंट के एग्लोमेरेट्स का पार्टिकल होगा, कहीं पे एग्लोमेरेट का पार्टिकल छोटा होगा। जो आप पेंट डाल रहे हैं उसके लिए, उसके पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं। अभी वो पार्टिकल के साथ में रेजिन जो है ना, वो अपने आप को लेवल आउट करता है। रेजिन जो है वो फ्लो होता है उसके, तो सेटल होने लगता है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसमें सेटलिंग स्टार्ट हो गई। सेटलिंग का मतलब अब लेवल जो है वो पहले से ऑरेंज पील कम होना शुरू हुआ। अभी ऑरेंज पील जब कम हो जाती है, लेवल आउट हो रहा था, उसी समय एक और फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट इवापोरेशन। अब सॉल्वेंट अपनी जगह छोड़ के जा रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट जो अपनी जगह छोड़ के जा रहा है, उसको फिल करने के लिए कौन आएगा? सबसे पहले रेजिन भागेगा वहां पे, ठीक है। सो अगर बहुत फास्ट सॉल्वेंट इवापोरेशन होगा, तो रेजिन को टाइम नहीं मिलता है उस जगह को कवर अप करने के लिए। तो यहां पर एक सॉल्वेंट इवापोरेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सॉल्वेंट इवापोरेशन का रेट ऑफ इवापोरेशन क्या है फिनिश के अंदर। सो ऑरेंज पील को रिड्यूस करने के लिए जो सॉल्वेंट कंपोजिशन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जस्ट कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड वन इज, अभी सॉल्वेंट को हमने एडजस्ट कर लिया, अभी भी ऑरेंज पील है उसके अंदर, तब हमको आर्टिफिशियल फ्लो एंड लेवलिंग एजेंट्स का जरूरत पड़ता है, जिन्हें हम सरफेस एडिटिव बोलते हैं, ठीक है। सो आर्टिफिशियल फ्लो एंड लेवलिंग एजेंट के अंदर हमारे पास क्या एक्रिलेट बेस्ड फ्लो एंड लेवलिंग एजेंट है, जो हिल एंड वैली है ना, उसके बीच में जाके सेटल हो जाते हैं। तो आपका जो डिफरेंस हिल और वैली के बीच का, उसको रिड्यूस कर देते हैं, ताकि जो लाइट है ना, जब ये वेव स्कैन भी क्या करता है, एक लाइट को उसके ऊपर थ्रो करता है और रिटर्न उसको रिसीवर में एनालाइज करता है कि कहां से कितना रिफ्लेक्शन आया। होता क्या है, एक पैनल ले लिया इस तरीके से, उसके ऊपर जो मशीन होती है वो यूं रन की जाती है, वेव स्कैन मीटर, और वो वेव स्कैन मीटर उसको चेक करके बताता है कि कहां पर, मतलब वो जब एक एरिया को कवर करता है, तो वो बोलता है कि इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेगा, और 1 to 10 के या 0 to 10 के बीच में वो एक रेंज दे देगा आपको कि इस रेंज में है। सो दिस इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वैली एंड द हिल, द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वैली एंड हिल, दैट इज कैलकुलेटेड इन वेव स्कैन मीटर बेसिकली। तो जितने गड्ढे का साइज ज्यादा होगा, उतना आपको वैल्यू जो है वो कम मिलेगी, और जितना ज्यादा होगा, जितना आप डिफरेंस को पाटते जाएंगे, उतना आपको लेवलिंग अच्छी मिलेगी, यानी वो वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी, 10 की तरफ होती चली जाएगी। 10 का मतलब है एब्सोल्यूट लेवलिंग, जो कि कोटिंग में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम पार्टिकल साइज को हम इवन नहीं कर सकते। हमारे पास D50 का पैरामीटर होता है, इवन अगर आप बात करेंगे D95 तक चले जाएंगे, D99 जाएंगे, तभी भी 1% रह जाएंगे पार्टिकल, जो कि वेव स्कैन मीटर के अंदर आएंगे। तो अब जैसे ऐसा है कि मान लीजिए आपने टाइटेनियम डाइऑक्साइड लिया, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जनरल एवरेज पार्टिकल साइज है 0.4 माइक्रोन। और अगर आप 0.4 माइक्रोन का तो पार्टिकल कभी तोड़ ही नहीं सकते ना, वो तो मैन्युफैक्चरर ने बनाया, और उसके बाद जब उसने पैक किया, उसी समय प्राइमरी एग्लोमरेट हो गया, आपके तक जब शिप हुआ था तो सेकेंडरी एग्लोमरेट हुआ। जब आपने बैग खोला
पहली बार यूज किया तो टर्सरी एग्लोमेरेट बनेगा, यानी थर्ड टाइम एग्लोमेरेशन हो गया, कुछ दिन वो बैग छोड़ दिया तो उसमें और पार्टिकल साइज बढ़ता चला जाएगा उसका, ठीक है। तो अब आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं, पर ब्रेक डाउन करके कभी भी हम प्राइमरी पार्टिकल साइज तक नहीं आ पाते। अगर हम प्राइमरी पार्टिकल साइज तक आ जाए तो 1 ग्राम कोटिंग, 1 ग्राम टिटेनियम के अंदर आप 1 स्क्वायर मीटर एरिया कवर कर सकते हैं। सो वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते, कभी हम प्राइमरी नहीं पहुंच पाते। आप सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी तक हम आकर के रह जाते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में खेलते रह जाते हैं, जहां पर कि एवरेज पार्टिकल साइज जो है वो 1.5 माइक्रोन से लेकर के 3 माइक्रोन के बीच का होता है। तो आप 0.4 यहीं से सारी ऑरेंज पील की शुरुआत होती है। सो द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिच सॉल्वेंट विच इवोपरेट्स बट डज नॉट शॉक द फिल्म। एक है बहुत जल्दी जल्दी निकलेगा तो शॉक देगा फिल्म को, तो उसमें आपको, आप जब नजर से भी देखेंगे ना नेकेड आइज से, तो आपको ऐसा लगेगा एक गड्ढा बना और भर गया, एक पिन जैसा बना और गड्ढा बना भर गया, तो रेजिन फ्लो होकर के वहां जा रहा है। अभी जब जैसे जैसे ये थोड़ी ड्राई होने लगेगी ना, तो रेजिन का मूवमेंट कम हो जाएगा। रेजिन का मूवमेंट कम हो जाएगा तो मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको या तो फ्लोरिनेटेड सर्फेक्टेंट्स पे जाना पड़ेगा, या आपको पीडीएमएस जैसे सरफेस वेटिंग एजेंट्स के पास जाना पड़ेगा, या आपको एक्रिलेट फ्लो एंड लेवलिंग पे जाना पड़ेगा। सो द बेस्ट वन इज टू स्टार्ट विद एक्रिलेट फ्लो एंड लेवलिंग, then followed by fluorinated base surfactants, means fluorine modified PDMS are there or silicon oils are there, which gives very good flow, overall flow to the film. And third one is from the application side, incorporation of some rich solvents, like there are some glycol esters are available, glycol ester acetates are available. When you incorporate those solvents in a small amount, they will impact a lot on orange peel. So now the question is राजेश जी का कि इनको 7 और 8 जो ऑरेंज पील वैल्यू वो कैसे आए। देखिए 7 और 8 ऑरेंज पील वैल्यू लेने के लिए राजेश जी और मतलब तो कोई भी एप्लीकेटर प्लस मैन्युफैक्चरर दोनों को लाइन इन लाइन होके काम करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आएगा, जो पॉलीमर, जो बेस पॉलीमर आप ले रहे हैं, जैसे जो रेजिन ले रहे हैं ना, वो रेजिन जो बनाने वाला है ना, वो भी उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी होता क्या है कि जो व्हीकल ओईएम के लिए जो रेजिन बनता है वो रिफिनिश इंडस्ट्री में यूज नहीं किया जाता है, जो रिफिनिश इंडस्ट्री के लिए बनता है वो इंडस्ट्रियल कोटिंग में यूज नहीं किया जाता है। सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ रेजिन्स। जैसे अगर मैं बात करूं तो पॉलीयूरेथेन की बात अगर हम करें, क्योंकि टॉप कोट पॉलीयूरेथेन से डालते हैं, तो पॉलीयूरेथेन की अगर आप बात करें तो क्लियर कोट के अंदर जब पॉलीयूरेथेन की कोटिंग होती है क्लियर कोट के अंदर, सो सॉल्वेंट कंपोजिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब म्यूट हो गए गलती से। हाँ जी, कोई इशू नहीं है। सो जो थिनर के अंदर है उसमें भी रिच सॉल्वेंट होना चाहिए, जो पार्ट ए है उसके अंदर भी होना चाहिए, और जो फ्लो एंड लेवलिंग एजेंट्स हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन देयर आर सर्टेन को बाइंडर्स, वरुण विल एग्री विद मी ऑन दिस पार्ट, देयर आर सर्टेन को बाइंडर्स which will help to get better and better surface finish with very less orange peels. सो देखिए ये आपको और मैन्युफैक्चरर दोनों को बात करना पड़ेगा आपस में कि आपको जो वैल्यू इंक्रीज करनी है, आप अपने इंड से सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप कुछ रिच सॉल्वेंट का इनकॉर्पोरेशन करेंगे और आपको पहले से बेहतर मिलने लगेगी। बट अल्टीमेटली दिस बॉल विल गो इन द गोल और इन द फील्ड ऑफ द मैन्युफैक्चरर। वहां उसको रेजिन का सिलेक्शन भी करना है, ओवरऑल पेंट फॉर्मुलेशन बनानी है, एंड एडिटिव्स का भी राइट एडिटिव राइट डोजेस का भी यूज करना है। सर इसमें हम लोग पीएमए टाइप पीयू में भी यूज कर सकते हैं ना, कि ताकि थिनर में इनकॉर्पोरेट हो तो होता ही है। नहीं, थिनर जो है वो पीएमए के साथ में हो या लेट ड्राई थोड़ा सा हो। मनीष जी आप जो बात कर रहे हैं, ये जो सवाल है ये ओईएम से आया है जी, जनरल इंडस्ट्रियल मार्केट से नहीं। जनरल इंडस्ट्रियल मार्केट में पीएमए बहुत रिच सॉल्वेंट माना जाता है, हाँ। ओईएम में वो कॉमन सॉल्वेंट है। मैं समझ गया, नहीं मेरा मतलब सिर्फ इतना कह रहा है कि मैं सॉल्वेंट का नाम ना बोलकर हमें रिच सॉल्वेंट या लेट ड्राई सॉल्वेंट यूज करें तो ये चीज ठीक हो सकती है शायद। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जैसे ब्यूटाइरेट बेस्ड सॉल्वेंट्स आते हैं, आईबी हो गया, which gives a very good flow and leveling. It is a costly one, but it gives a very good flow and leveling. IB. Then there are, yeah, IB. That is a isobutyrate. The name is something like that. Yeah. So IB is its short name. You can use that.
you can use MAK, methyl amyl ketone. That is also giving very rich wet look to the surface. So it also helps getting a better leveling because of the late evaporation and no soaking to the film. So जितना फास्ट आप करेंगे ना उतना आपको ऑरेंज पील के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं. Great, sir. Mr. Clement is there. He's saying something. He's from Chennai and wanted to. I want Mr. Clement that you should come in and whatever writing, just speak over, sir. Mr. Clement, just unmute yourself, sir. Mr. Clement. Okay, he's saying that also orange peel is bound to appear in some synthetic like systems like NC, which can be removed completely by using rubbing compound. It also drastically improves ultra fine aluminum oxide. So right, sir, right said, Mr. Clement. And if you can come over and speak, it's very, it will be good for us also. Anyways, yes. Am I audible? Yeah, please. Yeah. See this regarding the orange peel. Can you introduce yourself, sir? Can you introduce yourself? I am Clement Vincent, manufacturer from Chennai. Great. So regarding this orange peel, normally it is because of the minor incompatibility. Okay, so now what we do in certain systems is, even in this UF and MF formulations, it occurs. It is bound to occur. So we use the ModoFlow or Resiflow. It's again what you call a resin, which aids in. Hello, am I audible? Yes, please. Yes, you are audible. Yeah, it aids in a better flow so that a uniform surface is formed. So certain systems, as I already said, as Sir has already highlighted, solvent manipulation itself will aid in removing the orange peel to a large extent. Great, sir. Yeah. Just drop your number, Mr. Clement. You have taken the name ModoFlow and Resiflow. Yes. See, ModoFlow is my brand name. You have taken, and the chemistry is acrylate. Yes, true. Yeah. Correct. So means you are just giving a strong strong support to my thought that acrylate based flow and leveling additive helps a lot to reduce. Yes. Normally, in very small doses, we in all our stuffing thing we use it, because MF and UF wherever it is there, to avoid the orange peel, we use it even in certain what you call cold cut MFUF systems. Also, we do use ModoFlow. But in the case of NC, the issue is because of so many solvents, because the system itself is fraught with the incorporation of so many solvents, like alcohol is there, then esters are there, sometimes even ketones are there. So we use what is called as a diacetone alcohol to improve the flow, but it marginally only helps. The answer is you have to cut out the orange peel using a compound, what is called as water rubbing compound, or nowadays ultra fine grit papers are coming, aluminum oxide papers. Just you use it over it, no scratches are there. It just cuts the orange peel and gives a smooth surface with an excellent gloss. Rajesh, I think this will help you a lot, Mr. Rajesh Gavde. Unmute कीजिए सर अपने आप को. Sir, as you said, Clement said, this process is in line in every paint shop, and that papers are available here. 3000 number paper. We are actually using it because nowadays customer is asking for that. They require 7 to 8 number. So this process we are already adopted, and that is a general practice nowadays in every paint shop. If you go, so people are using it. My question is what Dr. Sir has given a lot of answers of that. So my one more question is that can we heat the paint and reduce the orange peel? No. I don't. And
If No, why see, can't we heat? if you are heating the paint, you are just reducing the application viscosity. Right, absolutely. Yeah. So by See, that working, my you question will is, get can an I heat even it? film. But it is the phenomena after the application of film. When at the time No, point of drying. no, Yeah. no. No. So See, I will not heat it up to 80. I will heat up to 40 degrees. yeah, you want to bring it back to the natural room temperature, right? Atmospheric temperature 35, 40 degrees, maybe Yes, 35 ambient. degrees. Ambient, almost ambient. 40, Yeah. 45 So degrees, any problem is there with heating that? in that process also you will lose some portion of the solvent. Yes. No, what true solvents or what I am going to add the solvents? Normally true solvents are lost. Actually, if you want to heat the paint, do not add thinner and heat. Heat it as No, it I am not going to heat. See, I am not going to heat it with some other equipment. So suppose I will use ultrasonics in that, and that will heat it up to 40 degrees, and that will give a level it out. No, see, leveling happens when film starts curing. Yes. So the heating of the paint will help you in the application side. But right, once not on the orange peel. Yeah, but orange peel is more or less phenomena when solvent starts evaporating and resin has to take its place. Resin has to fill the voids of the solvent actually. सर मेरा कहना ऐसा था, आपका पार्ट ठंडा है, मैंने पेंट गरम किया है. You don't mind जब talk in English. Sorry, yeah, very sorry. इंग्लिश में शादी का okay. Actually your part is at a room temperature. Yes. And your paint is at 40 degrees. When both will meet, there will be a leveling, isn't it? No, I don't think. For good leveling, both need to be on the same temperature. How, sir? Just So elaborate. again, there is a minor thermal shock, no? If the temperature difference is there is a very minor temperature shock, is it not? So that can lead to cracking and other problems. When there is a temperature difference, there is a thermal shock. Another risk is there can be a risk of fire because there will be electricity generated when there is a difference in temperature. It is hardly 5 degrees, no? That's why I'm asking. There is some difference in temperature, no? See, that can trigger thermal shock, is it not? See, Mr. Rajesh, if there is a difference of 5 degrees, why you need to heat the paint? See, because if the part is at ambient temperature and your paint is also at ambient temperature, unless you are operating at a very low temperature area like that right now, if you are in northern part of India where the temperature, the shade temperature is around 5 degrees centigrade, and the storage and the ambient temperature is somewhere between 8 to 10 degrees centigrade. So unless that is the case, you need to heat both the part to get the ambient one. Ambient temperature, so that the film leveling may happen. So first thing is that, and second thing, if your part is cooled and your paint is heated, when you apply the first atom which will go and stick on the surface, it will instant dry on there. Because in atomized particle where there is a very less amount of solvent, so it will evaporate immediately. So there may be a chance of more orange peel in thin films. In thick films, you will get a leveling. But in thin films, where when the film thickness is below 20-25 microns, there you may find that your leveling is not that good. DOI is good, but your wave scan meter will not show the improvement on orange peel value. Okay. Yeah. The heating so maybe you got the answer, Mr. Rajesh. Where the ambient temperature is very low. Tape. Sister. Okay, thank you. Okay, sir. Time is 11 o'clock approx. चलो मनीष जी अब चलते हैं.
Mr. Clement, kindly give me your number, sir. We would like to connect you for further things, maybe, and we can add you in our Paint Vision group also, if you're not in that, Mr. Clement. देखिए, आज कोई स्पीकर तो था नहीं और हम लोग सभी स्पीकर्स थे, हम लोग सभी लिसनर्स थे. सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी. Okay, I'm allowing everybody to unmute themselves. So kindly everyone unmute themselves and give a round of applause for the paint industry, for yourself, for myself, for everyone. इसके लिए ताली होनी चाहिए सर, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया है और बहुत ज्यादा कुछ सीखा है. और इसमें अव्वल नंबर पे मैं कहूंगा कि हमारे डॉक्टर साहब रहे हैं हमारे साथ में और स्टूडेंट रहे हैं और बाकी भी लोगों ने जिन्होंने साथ दिया. और मैं स्पेशली अपनी बात करूं तो ऑरेंज पील को अच्छे से समझ गया डॉक्टर साहब. आज की डेट में ये मेरे लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था आज, जो मैंने सीखा है. इसके अलावा अगेन वी आर आस्किंग यू टू ज्वाइन पेंट विजन. इफ एनीवन वांटेड टू ज्वाइन अस, if anyone wanted to join our Paint Vision group, they can send me their number and I will request Mr. Clement, kindly send me your number please, so that we can. Okay, I just got that right. So ठीक है सर, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए.